پیارے بچوں، عمران کو راتوں رات اغوا کر کے قاتل ڈاکو لے گئے۔ ایک قاتل اسے اٹھا کر جنگل کی طرف رات کے اندھیرے میں آیا، جہاں خونی درندے، اژدہے اور آدم خور مکڑیوں کی حکومت تھی۔ قاتل کو حکم تھا کہ عمران کو اس دلدل میں پھینکے جس کے اندر ہاتھی بھی گر جائے تو باہر نہ نکل پائے۔ دلدل اسے نکل کر ہڑپ کر جاتی۔ دلدل آ گئی۔ اس کے اندر اندھیرے سے دھواں اٹھ رہا تھا اور سسکاریوں کی آواز آتی تھی جیسے سانپ سانس دے رہے ہوں۔ قاتل نے عمران کو سر کے اوپر اٹھایا اور دلدل میں پھینک دیا۔ دلدل نے اسے نگلنا شروع کیا۔ پھر کیا ہوا یہ آپ خود پڑھ لیجئے۔ اے حمید۔ برازیل، جنوبی امریکہ۔ ڈیئر سسٹر، اپنے پیارے وطن پاکستان سے ہزاروں میل دور جنوبی امریکہ کے پراسرار ملک برازیل کے ایک شہر سوران سے 200 میل اندر گھنے جنگل کے ایک خوفناک ویران مکان میں بڑا سوچ رہا تھا کہ صبح جب قاتل ڈاکو مجھے دلدل میں لے جا کر پھینک دے گے تو کیا میں زندہ بچ سکوں گا یا نہیں۔ نظر تو یہی آتا تھا کہ برازیل کی جنگل کی خونی دلدل مجھے نکل لے گی۔ ان جنگلوں کے بارے میں ہم نے سن رکھا ہے کہ یہاں ایسی دلدلیں ہیں کہ اگر ان میں 12 ہاتھی اوپر تلے گر جائیں تو پتہ نہ چلے کہ وہ کہاں گئے۔ ہاں، اگر خدا نے میری زندگی لکھی ہے تو پھر مجھے کوئی نہیں مار سکتا۔ جسم اب تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہو رہا تھا۔ میں ہاتھ پاؤں ہلا سکتا تھا۔ میری آنکھیں کھلی تھی مگر جسم درد کرتا تھا۔ بازو میں گولی لگی تھی، وہاں ابھی تک درد ہو رہا تھا۔ ٹکی کا اثر ختم ہو گیا۔ میں اٹھ کر بند کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میں یہاں سے بھاگ سکتا ہوں یا نہیں، مگر کمرہ بند تھا، بھاگ کر کہاں جاتا۔ اتنے میں آوازیں سنائی دیں۔ دروازہ کھلا۔ وہی قاتل ڈاکو جس کا سر درمیان سے گجا تھا 2 آدمیوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ ان کے ہاتھوں میں پستول تھے۔ مجھے چلتا پھرتا دیکھ کر وہ گھبرائے۔ ان کا خیال تھا میں بے ہوش ہوگا۔ جلدی سے گنجے قاتل کے حکم سے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے۔ ایک آدمی جس کو وہ ڈیوڈ کے نام سے پکار رہے تھے آگے بڑھا۔ اس نے مجھے کندھے پر اٹھایا۔ وہ بڑا طاقتور اور دیو کی طرح تھا۔ گنجے قاتل نے اپنی زبان میں سے کچھ کہا۔ ڈیوڈ جن مجھے اٹھا کر باہر جیپ میں ڈالنے لگا۔ جیپ لے کر رات کے اندھیرے میں جنگل کے اندر جانے والی پگڈنڈی پر چل پڑا۔ میں نے راستے میں کئی بار کوشش کی کہ اٹھ کر چھلانگ لگاؤں مگر ایسا نہ کر سکا۔ میری مشقیں بری طرح سے کس دی گئی تھیں۔ پاؤں کی رسی کو جیپ کے کنڈے سے باندھ دیا گیا تھا۔ جیپ جنگل میں پہنچ کر ایک جگہ رکی۔ اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ جھینگروں کی آوازیں آتی تھی۔ بڑے بڑے مچھر کانوں میں پی پی کرتے۔ ڈیوڈ جیپ سے نکل کر میرے قریب آیا، مجھے اٹھا کر کندھے پر رکھا اور پیدل جنگل کے اندر چلنے لگا۔ اس کے چلنے سے میرا کندھا سخت درد کرنے لگا۔ درختوں کی شاخیں آگے لٹک رہی تھی۔ وہ اسے ایک ہاتھ سے ہٹا کر راستہ بنا رہا تھا۔ جنگل چپ چاپ تھا۔ جھینگر کسی بھی وقت سہمے سہمے بولتے تھے۔ کبھی درختوں میں کسی درندے کے ڈگارنے کی آواز آتی۔ ہمیں آتا دیکھ کر درخت پر بیٹھا کوئی جانور پھڑپڑا کر اڑ گیا۔ میں نے انگریزی میں ڈیوڈ سے کہا کہ وہ مجھے دلدل میں نہ پھینکے۔ ڈیوڈ نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایسا لگتا تھا اس پر رحم کی اپیل کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ وہ ایک اونچی جگہ پہنچ کر رکا۔ پھر اس نے مجھے کندھے کو جھکا کر ایک طرف پھینک دیا۔ میں دھپ کی آواز سے کیچڑ میں گر پڑا۔ میرا زخمی بازو اوپر تھا۔ یہ کیچڑ نہیں بلکہ دلدل تھی۔ میرے گرتے ہی دلدل نے ہلنا جلنا شروع کر دیا جیسے اس میں انسانی جسم کی بو سے جان پڑ گئی۔ وہ ہولے ہولے اوپر نیچے ہونے لگی اور میں اس کے اندر جانے لگا۔ میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ اگر کھلے ہوتے تو انسان برازیل کے جنگلوں کی دلدل سے ایک دفعہ گر جانے کے بعد جتنا بھی ہاتھ پاؤں مار لے اتنا ہی اندر دھستا ہے۔ میں نے اندھیرے میں اپنے کالے قاتل ڈیوڈ کے سائے کو دیکھا۔ وہ جنگل کے درختوں میں واپس جا رہا تھا۔ دلدل مجھے پاؤں کی طرف سے نکل رہی تھی۔ پہلے میرے دونوں پاؤں دلدل کے اندر گئے۔ میں نے انہیں کیچڑ سے باہر نکالنے کے لیے دباؤ ڈالا تو وہ اور زیادہ اندر چلے گئے۔ میں رک گیا۔ دلدل نے آہستہ آہستہ مجھے پھر نگلنا شروع کر دیا۔ میرے پاؤں پھر دلدل نگلنے لگی۔ میں گھٹوں تک دلدل میں دھس گیا تو موت کے خوف سے میری چیخ نکل گئی۔ چیخ اتنی ڈراؤنی تھی کہ میں خود اپنی چیخ کی آواز سن کر ڈر گیا۔ درختوں پر سے کئی پرندے پھڑپڑا کر اڑے۔ میری چیخ کی آواز جنگل میں گونج گئی۔ دلدل اپنا کام کر رہی تھی۔ میرے گھٹنے بھی دلدل کے اندر چلے گئے۔ دلدل مجھے زندہ بھوت لگ رہی تھی جس کے جبڑے مسلسل چل رہے ہوں، جو مجھے کھا جانے کے لیے بے قرار ہو۔ میں نے ایک اور چیخ ماری۔ جنگل ایک بار پھر گونج اٹھا۔ میں کمر تک دلدل میں دھس چکا تھا۔ اب کوئی معجزہ ہی مجھے بچا سکتا تھا اور یہ معجزہ ہو گیا۔ جب دلدل کا گندا کیچڑ میرے سینے تک پہنچا تو اچانک میرے اوپر ایک رسا آ گرا اور کسی نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہا، اسے پکڑو۔ میں سمجھا کہ غیب سے خدا نے میرے لیے کوئی مدد بھیجی ہے۔ میں نے ایک ہاتھ سے رسے کو تھام لیا، دوسرا بازو درد کر رہا تھا۔ میں نے رسے کو اپنے کندھوں کے گرد لپیٹا۔ کسی نے اسے کھینچنا شروع کیا۔ میں دلدل سے باہر نکلا۔ اب دلدل پر کشتی کی طرح رینگتا کنارے پر آیا تو مضبوط ہاتھوں نے مجھے اوپر کھینچ لیا۔ اندھیرے میں مجھے ایک سایہ اپنے اوپر جھکا دکھائی دیا۔ خوف اور بازو کے درد کی وجہ سے میری آنکھیں بند تھی۔ اجنبی مجھے کندھوں پر اٹھا کر ایک جھوپڑے میں لے گیا جو قریب درختوں کے بیچ بنا ہوا تھا۔ اس نے مجھے پتوں پر لٹایا اور کہا کہ میں تو تمہاری چیخ کی آواز سن کر آیا تھا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا تو اجنبی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خاموش رہو۔ پھر اس نے بھینس کے کھوکھلے سینگ
कुछ नमकीन सा पानी भर कर मेरे मुंह में टपकाया। शायद इसमें कोई जड़ी बूटी थी। इसको पी के मुझे नींद आई। आंख खुली तो झोंपड़ी में दिन का उजाला फैला था। मैंने अपने पास एक खट्टे कट्टे ताकतवर बदन वाले पहलवान किस्म के रेड इंडियन को बैठे देखा। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। मैंने देखा कि मेरे बाजू के जख्म पर नई पट्टी बंधी थी। इसमें से किसी जड़ी बूटी के पत्ते बाहर निकले थे। रेड इंडियन बोला, मेरा नाम डमंगू है। मैं ब्राजील के बड़े शहर में काम करता रहा हूँ, इसलिए अंग्रेजी बोल लेता हूँ। रात में अपनी झोपड़ी से दूर लोमड़ का शिकार कर रहा था। तुम्हारी चीख की आवाज सुनकर वहां आया। क्या तुम दलदल में गिर पड़े थे? मेरे बाजू का दर्द कम हो गया। तबीयत भी पहले से अच्छी थी। मैंने कहा, नहीं, मुझे गिराया गया था। रेड इंडियन डमंगू हैरानी से बोला, क्या तुम्हारे किसी दुश्मन ने तुम्हें इस दलदल में गिरा दिया था? हाँ। तुम्हें दुश्मन का सर काट देना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं तुम्हारे दुश्मन का सर काटने में तुम्हारी मदद करूंगा। ये लो, कुछ फल खा लो। डमंगू ने मुझे जंगली फल खाने को दिए। 2 दिन आराम और देखभाल के बाद मैं भला चंगा हो गया। बाजू का जख्म भर गया। डमंगू को मैंने शहर के बैंक में जाके वो लड़की के कत्ल और दूसरी लड़की के अगवा की दास्तान सुनाई। डमंगू बोला, मैं इस लड़की को छुड़ा कर लाऊंगा। हम लड़की की इज्जत करते हैं। हमारे कबीले में कोई लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। तुम मुझे बताओ, वो लोग कहाँ रहते हैं? मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। हमने दूसरे दिन सुबह सुबह वापस गंजे कातिल के डेरे पर छापा मारने का प्रोग्राम बनाया। रात को डुमंगू ने मुझे फल और दूध ला कर दिया। मैंने इससे पूछा कि वो इस झोंपड़ी में क्यों रहता है, जबकि वहां से थोड़ी दूर इसका अपना कबीला है। डुमंगू ने मेरी तरफ चमकीली आंखों से देख कर कहा, अगर मैं तुम्हें एक राज बताऊं तो तुम किसी को तो नहीं बताओगे? मैंने कहा, नहीं, हरगिज नहीं। तो सुनो, डुमंगू बोला, इस जंगल में थोड़ी दूर आगे एक नदी बहती है। इस नदी में कभी कभी आधी रात को एक जलपरी निकलकर किनारे पर आती है और अपने लंबे बाल बनाती है। मैं इस जलपरी को पकड़ने के लिए यहाँ बैठा हूँ। जब भी मेरा इससे आमना सामना होता है, वो नदी में कूद कर गायब हो जाती है। मुझे रेड इंडियन डुमंगू की कहानी परियों की बहुत पुरानी लगी। मैंने इस ख्याल से कहा कि ये बेचारा नौजवान वहम का शिकार है। डुमंगू ने कहा कि वो आधी रात को मुझे नदी पर ले जाएगा। हो सकता है जलपरी बाहर आए। मैं दिल में इसके भोलेपन पर हंसता रहा। आधी रात हुई तो डुमंगू ने मुझे जगाया और कहा, आओ मेरे साथ जलपरी को पकड़ने चलें। मैं उठकर इसके साथ चल पड़ा। हम दरख्तों से होकर जब दलदल के पास आए जहां मुझे धक्का दिया गया था, अचानक डुमंगू रुक गया। वो एक तरफ मुंह करके नत्थे फैलाता रहा और फिर कहने लगा, कोई इंसान इधर आ रहा है। हम दरख्तों के पीछे छुप गए। इसका अंदाजा दुरुस्त था। जंगल के अंधेरे में एक ऊंचा लंबा आदमी निकलकर दलदल के पास आकर रुका। हम इसके करीब ही दरख्त के पीछे छुपे थे। मैंने इस आदमी को पहचान लिया। ये डेविड था। इसने मुझे दलदल में धक्का दिया। मैंने डुमंगू के कान में आहिस्ता से कहा, यही वो कातिल है जिसने मुझे दलदल में गिराया। डुमंगू की आंखें सुर्ख होकर चमकने लगी। वो आदमी यानी डेविड दलदल में कोई ट्रंक फेंकने आया। शायद ये वही ट्रंक था जिसमें बैंक से लूटे डॉलरों के नोट भरे हुए थे। अब वो लोग नोट निकालकर खाली ट्रंक दलदल में फेंक रहे थे ताकि किसी के हाथ कोई सबूत ना आए। डुमंगू के पास सिर्फ एक नेजा था। इसने नेजा मेरे पास छोड़ा। वो खुद मकार चीते की तरह झुककर डेविड की तरफ बढ़ा। डेविड दलदल में ट्रंक फेंकने के लिए इधर उधर तक रहा था। ट्रंक को दलदल निकल रही थी। डुमंगू अचानक इसके सामने आ खड़ा हुआ। ये ब्राजीलिया के रेड इंडियन लोगों का दस्तूर है कि वो दुश्मन पर पीछे से वार नहीं करते, हमेशा सामने से जाकर खबरदार करके हमला करते हैं। अगर दुश्मन निहत्था हो तो खुद भी निहत्थे हो जाते हैं। एक ऊंचे लंबे रेड इंडियन को सामने देख के डेविड पहले तो घबरा कर पीछे हटा, फिर एकदम इस पर झपट पड़ा। दोनों गुत्था मुत्ता हुए, दोनों ताकतवर थे, मगर रेड इंडियन डेविड से ज्यादा मजबूत था। इसने डेविड को दोनों हाथों से ऊपर उठाया और दलदल में फेंक दिया। डेविड की चीख जंगल में गूंजी। इस तरह मेरी चीख से भी जंगल गूंज उठा था। दलदल ने देखते ही देखते डेविड को निगलकर हमेशा के लिए खत्म किया। डुमंगू मेरे पास आके कहने लगा, एक कातिल को अपने किए की सजा मिली। अब आओ चलकर जलपरी को देखते हैं। डुमंगू मुझे नदी पर लाया। ये बहुत खूबसूरत नदी थी जो जंगल में दरख्तों के बीचों बीच बहती थी। अंधेरे में इसका पानी धुंधले धुंधले शीशे की तरह चमकता। डुमंगू मुझे लेकर एक तरफ झाड़ियों में छुप गया। मेरे होंठों पर हाथ रखकर बोला, खामोश रहना, जलपरी के निकलने का वक्त है। मैं बिल्कुल यही समझ रहा था कि ये नौजवान रेड इंडियन वहम में मुब्तला है। शायद इस पर कोई दौरा पड़ता है जो आधी रात को जलपरी की तलाश में नदी की तरफ निकल आता है। लेकिन आप ये पढ़कर हैरान होंगे कि नदी के पानी में हलचल हुई और क्या देखता हूँ, एक जलपरी इससे निकलकर किनारे पर आ बैठी। इसका आधा धड़ औरत का, आधा धड़ मछली का था। इसके गीले लंबे बाल शानों पर फैले थे। इसे देखते ही डुमंगू पर कोई भूत सवार हुआ। एक चीख मारकर जलपरी की तरफ भागा। परी ने हड़बड़ा कर पीछे देखा और गुड़ाप से नदी में छलांग लगाई। डुमंगू भी इसके पीछे नदी में कूद गया। वो पानी में उछल कूद करता रहा, मगर जलपरी जैसे गायब हो गई। डुमंगू नदी से बाहर आकर किनारे पर सर झुकाकर बैठ गया। झाड़ियों से निकलकर इसके पास आया। डुमंगू उदास होकर बोला, वो फिर चली गई।
मैं कभी नदी को देखता, कभी डुमुंगू को। नदी का पानी बहुत आराम से बह रहा था। जलपरी पानी के अंदर ही अंदर न जाने कहाँ गायब हो चुकी थी। अचानक डुमुंगू उठा। इसने जमीन पर से तरक की गिरी शाख को उठाकर जोर से नदी के पानी पर मारा और चीख कर बोला, तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती। फिर वो मुझे वापस लेके झोपड़ी में आया। वो जागता रहा, जलपरी को याद करके अपने आप बड़बड़ाता रहा। दूसरे दिन वो वापस अपने कबीले में गया। दोपहर के बाद मेरे लिए दूध और फल लाया, तो मैंने इसे कहा कि मुझे भी वापस जाना है। तो वो कहने लगा, क्या इस लड़की को कातिलों के पंजों से नहीं छुड़ाओगे? हाँ, मगर हम निहत्ते हैं, वो एक गैंग है, इनके पास मशीन गन है, हम इनका मुकाबला कैसे करेंगे? डुमुंगू ने कहा, मैं अकेला इनका मुकाबला कर सकता हूँ। आज रात तुम मुझे इनके ठिकाने पर ले जाओ। दोपहर के बाद वो आया। इसके कंधे पर तीर कमान लटक रहे थे। कहने लगा, मेरे निशाने से कोई बच नहीं सकता, आओ मेरे साथ। मैंने कहा कि अभी 2 दिन है, रात के अंधेरे में चलना चाहिए। वो कुछ सोच कर बोला, ठीक है, मैं आज जलपरी का इंतजार नहीं करूंगा। वो मेरे पास झोंपड़ी के बाहर घास पर टांगे पसार कर बैठ गया और मुझे अपने कबीले के लोगों के बारे में बताने लगा। मैंने इससे पूछा कि क्या इसके कबीले के लोग दुश्मन का सर काट के इसे सुकेड़ कर छोटा करते हैं? इसने हंसकर कहा, ये कोई मुश्किल काम नहीं, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। इस वक्त मुझे इससे बड़ा डर लगा कि कहीं मेरा सर काट के इसे छोटा न कर दे। मैंने आगे कोई बात न की। डुमुंगू अपने आप कहने लगा, हम दुश्मन का सर काट के इसे गर्म पानी में उबालते हैं, फिर इसे गर्म रेत में डालकर भूनते हैं, इसके बाद दोबारा गर्म पानी में रख देते हैं। 3 दिन दुश्मन का सर गर्म पानी में पड़ा रहता है। चौथे रोज इसे निकाल कर अभी वो यहाँ पहुंचा था। क्याहट की आवाज पर वो एकदम चुप हुआ, आंखें घुमाकर इधर उधर देखने लगा, फिर जल्दी से छलांग लगाकर उठा, मुझे अपने साथ घसीट कर दरख्तों के पीछे ले आया। खामोश, कोई आ रहा है। इसकी छठी हिस्स बहुत तेज थी। इसने जरा सी हट पर पहचान लिया कि ये इंसान है जो इस झोपड़ी की तरफ आ रहे हैं। हम सांस रोके बैठे थे, झाड़ियों में बाहर देखने लगे। दिन के 4 बजे का अमल था। दरख्तों में दिन की रोशनी फैली थी। कदमों की आवाज झोपड़ी की तरफ आ रही थी। फिर किसी ने कहा, वो इधर नहीं होगा। 4 आदमी दरख्तों से निकलकर झोपड़ी के सामने आए। इनमें एक लड़की थी जिसका गम के मारे बुरा हाल था। बाल बिखरे थे, कपड़े मैले थे, चेहरा जर्द था, आंखें सहमी थी। इसे एक आदमी ने गले में रस्सी डालकर पकड़ा था। ये वही डाकू थे। आगे आगे इनका गंजा सरदार था। इसके हाथ में रिवॉल्वर था। बाकी तीनों के कंधों से मशीन गनें लटक रही थी। ये वही लड़की थी जिसको उन्होंने शहर के बैंक से उठाया। गंजे ने थूक कर कहा, वो कमीना भाग गया कहीं। खैर कोई बात नहीं, तुम लोग ऐसा करो, इस लड़की को दलदल में फेंक दो, इसे हम कहाँ साथ साथ लिए लिए फिरते रहेंगे। ये सुनकर लड़की ने खौफ से चीख मारी और बेहोश हो गई। गंजे ने चिल्लाकर कहा, ये बदबख्त हमें पकड़वा देगी, इसे जल्दी से दलदल में फेंक दो। एक आदमी लड़की को उठाने के लिए झुका और डुमुंगू ने अपनी कमान में तीर जोड़ा और अचानक चीख मारकर झाड़ी से बाहर आया। वो डाकुओं के सामने आ गया, क्योंकि इनके कबीले का उसूल था वो दुश्मन पर छुप कर वार न करते। ये इसकी बड़ी गलती थी, क्योंकि दुश्मन के पास रिवॉल्वर और मशीन गन थी। कातिल डाकुओं ने चौंक कर डुमुंगू की तरफ देखा। डुमुंगू ने तीर कमान में जोड़ा और चलाया। आवाज सुनकर आदमी इसके सामने आ गए थे, इसलिए सीधा तीर उसके सीने में जाके खुप गया जो शख्स लड़की को उठा रहा था। दूसरे ने मशीन गन चलाई, मगर डुमुंगू उछलकर दरख्त के पीछे हुआ। वहां से कमान में एक और तीर लगाया, निशाना बांधा और तीर छोड़ दिया। वो तीर गंजे कातिल की गर्दन में घुस गया। इसके मुंह से गड़गड़ाहट की आवाज आई। वो गिर पड़ा। तीसरा तीर एक और कातिल के सीने में खुप गया। चौथे डाकू ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। डुमुंगू ने जिंदगी की सबसे भयानक गलती की कि दरख्त की आड़ से निकलकर सामने आ गया। वो सामने आकर तीर चलाना चाहता था, मगर इससे पहले मशीन गन की गोलियां तड़ तड़ करती इसके सीने के पार हो गईं। वो खून में लथपथ होकर गिर पड़ा। मैं वहीं दुबक गया, क्योंकि डाकू इसके सर पर आकर खड़ा हो गया। डुमुंगू को खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। डुमुंगू मर रहा था। जो ही डाकू पीछे बेहोश लड़की की तरफ मुड़ा, डुमुंगू ने जमीन पर पड़े पड़े अपने खून से भरे हाथों से आहिस्ता से कमान में तीर जोड़ा, फिर कांपते बाजुओं से जरा सा ऊपर को हाथ करके इसे छोड़ दिया। सन की आवाज के साथ तीर डाकू की पीठ में जाकर घुस गया। वो आ भरकर आगे को गिर पड़ा। मशीन गन इसके हाथ से छूट गई। मैं तेजी से निकलकर डुमुंगू के पास आया। वो मर रहा था। इसकी आखिरी सांसें चल रही थी। मेरी तरफ इसने देखकर बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और एक हिचकी ली। इसने दम तोड़ दिया। एक बहादुर नौजवान रेड इंडियन की मौत मेरी आंखों के सामने हुई थी। मैंने डुमुंगू के खुले पपोटों को हाथ से बंद किया, इसके हक में दिल ही दिल में दुआ की और उठकर बाकी डाकुओं को देखा। डुमुंगू के तीर 3 डाकुओं के दल के पार हुए थे। वो मर चुके थे। सिर्फ गंजा कातिल अभी जिंदा था। इसकी आंखें बंद थी, गले में सांस उखड़ उखड़ कर चल रही थी। इसकी गर्दन में तीर आर पार था और खड़खड़ाहट की आवाज के साथ खून बह बह कर जमीन पर जम रहा था। मैंने लड़की को होश में लाने की कोशिश की। इसके मुंह पर भैंस के सींग में से पानी लेकर छींटे मारे। वो आंखें खोलकर मुझे तकने लगी। वो बेहद डरी थी। इसने अपने आसपास खून में नहाई लाशें देखी तो खौफ से लरसने लगी। मैंने इसे हौसला दिया और कहा कि फिक्र न करे, अब कोई खतरा नहीं। सब डाकू हलाक हो गए। थोड़ी देर के बाद लड़की जरा संभली। इसने मुझसे कहा, मैंने तुम्हें बैंक में देखा था, क्या तुम वही हो? मैंने इसे अपनी कहानी सुनाई तो वो डुमुंगू की मौत पर बहुत गमजदा हुई। हम डुमुंगू की लाश को इसके कबीले में पहुंचाना चाहते थे, लेकिन एक तो हमें इसके कबीले का पता न था, दूसरा हमें खतरा था कहीं इसके
قبیلے والے یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اسے قتل کیا، وہ ہمارے سر کاٹ دیں۔ ہم نے وہاں زمین کھود کر اسے دفن کر دیا اور جھوپڑی میں بیٹھ کر سوچنے لگے کہ ہمیں کس طرح سے شہر کو چلنا چاہیے۔ اس لڑکی کا نام سوسن تھا، وہ شہر سوران کے ایک وکیل کی بیوی تھی اور امریکی بینک میں نوکری کرتی تھی۔ کہنے لگی، مجھے کچھ یاد نہیں کہ یہ لوگ جنگل میں مجھے کس راستے سے لائے تھے۔ بڑا بھیانک راستہ تھا، راستے میں کئی سانپ اور گرگٹ تھے جنہیں ان لوگوں نے ہلاک کیا۔ وہاں جانا خطرناک ہے، تو پھر ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ میں نے پوچھا۔ سوسن نے کہا، اور تو کوئی راستہ میں نہیں جانتی، میرے خیال میں ہمیں اسی راستے سے جانا چاہیے۔ جب میں نے کہا کہ یہاں قریب ایک ندی ہے تو اس نے چونک کر کہا، ہم ندی کے رخ پر چلتے ہیں، کیونکہ یہ ندی ضرور دریائے ایمیزون میں آگے جا کر گرتی ہوگی اور ہمارا شہر دریائے ایمیزون کے کنارے ہے۔ ہمیں ایک بار اس پر چلنے لگے تو دریائے ایمیزون پہنچ جائیں گے اور پھر آگے کا سفر آسان ہوگا۔ دریا پر ہمیں کوئی نہ کوئی کشتی شہر کو جاتی مل جائے گی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارا خیال مناسب ہے، ہم کل صبح یہاں سے چل پڑتے ہیں۔ میں نے اسے دودھ اور پھل کھانے کو دیے جو ڈومونگو میرے لیے لایا تھا۔ ڈومونگو کو یاد کر کے میں اداس ہو گیا۔ رات کو میں نے سوسن کے لیے جھوپڑی کے اندر سونے کے لیے جگہ بنائی، خود جھوپڑی کے باہر خشک پتوں کا بستر بنا کے لیٹ گیا۔ ایک مشین گن سوسن کے پاس تھی اور ایک ریوالور میں نے اپنے پاس رکھا۔ جب میں نے سوسن کو بتایا کہ میں نے ندی میں جل پری دیکھی تو اسے بالکل یقین نہ آیا۔ میں نے کہا، جب ڈومونگو نے پہلی بار مجھے جل پری کی بات بتائی تھی تو مجھے بھی یقین نہ آتا تھا، مگر پھر میں نے جل پری کو اپنی آنکھوں سے ندی سے باہر نکلتے دیکھا۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ سوسن نے کہا، تم دونوں نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اس کے بعد وہ سو گئی۔ میں دیر تک جاگتا رہا، پھر مجھے بھی نیند آ گئی، میں سو گیا۔ دوسرے دن آنکھ کھلی تو دن نکل آیا۔ سوسن ابھی تک سو رہی تھی، میں نے اسے جگایا۔ اس نے اٹھ کر ندی پر جا کر ہاتھ منہ دھویا۔ رات کے بچے کچھ پھل کھائے، وہ ہم نے مل کر ختم کیے۔ ڈومونگو نے ایسی بوٹی کے پتے میرے جسم پر لگائے تھے کہ سارا درد جاتا رہا اور میں اپنے آپ کو تازہ دم محسوس کرتا تھا۔ ہم ندی پر آ گئے۔ دن کی روشنی میں ندی بڑی سکون سے بہہ رہی تھی۔ دھوپ اس پر نہیں پڑتی تھی کیونکہ اس پہ درختوں کی چھاؤں تھی۔ ہم نے پانی کے بہاؤ کے رخ پر چلنا شروع کیا کیونکہ ہمیں یقین تھا کہ ندی آگے جا کر دریائے ایمیزون میں گرتی ہوگی۔ جنگل میں ندی کے کنارے گھاس اگی تھی، ہوا بالکل بند تھی، حبس ہو رہا تھا۔ میں نے مشین گن سنبھال رکھی تھی۔ سوسن کے پاس ریوالور تھا، ایک پڑھی لکھی بہادر لڑکی تھی، وہ برازیل کی رہنے والی تھی۔ ان جنگلات کے بارے میں اس نے بہت کچھ پڑھا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ برازیل کے جنگلوں میں ایسی خوخار چوٹیاں پائی جاتی ہیں جو زندہ انسان پر اگر حملہ کر دیں تو منٹوں میں اسے چٹ کر جاتی ہیں۔ یہاں بکرے کے جتنے بڑے بڑے گرگٹ اور چھپکلیاں بھی ہوتی ہیں۔ سب سے خطرناک شے ایک قسم کی مکڑی ہے جو سائز میں بڑے کتے کے برابر ہوتی ہے اور اچھل کر چلتی ہے۔ یہ زندہ انسان کی گردن سے اگر چمٹ جائے تو اس کا خون پی جاتی ہے۔ میں نے سوسن سے کہا، جس طرف ہم جنگل میں جا رہے ہیں کیا یہ درندے اور خوخار جانور ہمیں یہاں بھی ملیں گے؟ سوسن بولی، ہو سکتا ہے کیونکہ یہ درندے عام طور پر جہاں پانی ہوتا ہے وہیں رہتے ہیں۔ میں نے کہا، ہمارے پاس ریوالور اور مشین گن ہے، ہم انہیں مار دیں گے۔ سوسن بولی، یہ گرگٹ اور مکڑیاں ہمیشہ ہی جھمکٹا بنا کر حملہ کرتی ہیں، پھر چونٹیوں کو ہم مشین گن کی گولیوں سے کیسے ماریں گے؟ ان کا واحد علاج ہے کہ ہم آگ جلائیں۔ آگ سے بہت سے درندے خوف کھاتے ہیں۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کہا، ہمارے پاس ماچس بھی نہیں، آگ کہاں سے جلائیں گے؟ سوسن کہنے لگی، اس لیے ہمیں سوکھی گھاس کے 2 چھوٹے گٹھر بنا کر اپنے ساتھ رکھنے چاہیے تاکہ اگر کوئی بھی خونی جانور ہم پر حملہ کرے تو ہم ریوالور کی گولی سے گھاس پوس کے گٹھروں کو آگ لگائیں۔ ترکیب بہت اچھی تھی۔ ہم نے اسی وقت جنگل کے درختوں کے نیچے سے سوکھی گھاس جمع کر کے اس کے 2 پتلے پتلے گٹھر بنا کے اپنے پاس رکھے تاکہ برے وقت پر کام آئیں۔ اس کے بعد ہم نے پھر سے ندی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا شروع کیا۔ جو ہم آگے بڑھتے تھے جنگل کی طرف زیادہ قریب ہوتے اور ندی کے کنارے پر چلنا مشکل ہونے لگا کیونکہ درختوں نے ندی کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا تھا۔ اس کے بعد کے حالات انشاءاللہ اپنے اگلے خط میں تفصیل سے لکھوں گا۔ اچھا، اب اجازت چاہتا ہوں، آپ کا بھائی عمران، برازیل، جنوبی امریکہ۔ پیاری بہن، سلام آداب۔ دوپہر تک ہم ایسی جگہ پہنچے جہاں ندی کے کنارے چلنا ناممکن تھا۔ اب ہمیں ایک چھوٹی کشتی کی ضرورت تھی مگر وہاں کشتی کا سوال پیدا نہ ہوتا تھا۔ آخر سوسن نے یہاں بھی عقل مندی سے کام لیا۔ ہم نے ادھر ادھر گھاس اور پتوں کی لکڑیاں اکٹھی کر کے ایک بڑا سا گٹھر بنایا، اسے ندی میں چھوڑ کر اس پر بیٹھ گئے۔ یہ ہماری کشتی بن گئی جو ایک طرف کو جھکی پانی میں بہنے لگی۔ ایک جگہ درخت اتنے نیچے جھک گئے کہ اس کی لٹکتی شاخیں ہمارے کندھوں سے ٹکرانے لگیں۔ خدا کر کے ندی کا پارٹ چوڑا ہوا اور درخت دور ہوئے۔ پیاس لگتی تو ہم ندی کا پانی پی لیتے۔ دوپہر کے بعد ہمیں بھوک نے ستایا۔ گھاس کی کشتی کو کنارے پر لا کر ہم نے اسے اوپر کھینچا اور پھلدار درخت کی تلاش میں جنگل میں آئے۔ سوسن نے ایک درخت سے ٹماٹر جیسا کوئی پھل توڑ کر مجھے دیا اور خود بھی پیٹ بھر کر کھایا۔ اس نے کہا، یہ بہت طاقتور پھل ہے، اس کا ذائقہ کھٹے انگوروں جیسا تھا۔ ہماری بھوک مٹی، ہمارا سفر پھر شروع ہوا۔ ہم کشتی میں بیٹھے چلے جا رہے تھے۔ جنگل میں ایک طرف سے ایسی آوازیں آنا شروع ہوئیں جیسے بہت ساری مکڑیاں آ رہی ہوں۔ سوسن نے گھبرا کر اس طرف دیکھا اور کہا، یہ وہی خونی مکڑیاں ہیں۔ میں نے دیکھا درختوں کے درمیان بکری جتنی اونچی کالی سیاہ مکڑیاں ہماری طرف اچھلتی ہوئی آ رہی تھیں۔ میں نے مشین گن کا رخ ادھر کیا۔ سوسن نے کہا، اس کی ضرورت نہیں،
یہ مکڑیاں پانی میں نہیں آئیں گی، یہ تیر نہیں سکتی۔ یہ مکڑیاں کنارے پر آ کر ہمارے ساتھ ساتھ دوڑنے لگیں۔ ان کی کالی پیٹھ اوپر کو اٹھی تھی، اگلی دونوں ٹانگیں ہاتھی کی سونڈ کی طرح اوپر کو اٹھا کر وہ لہرا رہی تھیں۔ سرخ سرخ انار کے دانوں جیسی آنکھیں ہمیں کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی مکڑی نہیں دیکھی تھی۔ اب کیا ہوا کہ سامنے ایک بہت بڑا اژدہا درخت پر لٹکتا ہوا جو نیچے گرا۔ یہ اژدہا ہاتھی کی ٹانگ سے بھی زیادہ موٹا تھا۔ مکڑیوں نے اسے دیکھا تو وہ چی چی کرتی اس پر ٹوٹ پڑی۔ اژدہا ان مکڑیوں کے سیاہ بادل میں چھپ گیا۔ سوسن نے کہا، اب دیکھنا یہ اژدہے کا کیا حشر کرتی ہیں۔ اژدہے نے 2-3 بار پھنکار ماری۔ اس نے کچھ مکڑیوں کو اپنے منہ میں لپک لیا، مگر تھوڑی دیر بعد اس نے مکڑیوں کی فوج کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ مکڑیوں نے اسے چٹ کرنا شروع کیا۔ 2 منٹ بعد جب مکڑیاں وہاں سے ہٹیں تو گھاس پر اژدہے کی جگہ اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا تھا۔ میں خوف سے کانپ اٹھا، مجھے نہیں معلوم تھا یہ مکڑیاں اتنی خوخار ہیں۔ سوسن نے بتایا، جب یہ کسی انسان پر حملہ کرتی ہیں تو اس کا بھی یہی حال کرتی ہیں۔ ہماری کشتی ندی میں آگے بڑھ رہی تھی، ہم اس پر آلتی پالتی مار کر بیٹھے تھے کیونکہ پانی کافی اوپر تک آ چکا تھا۔ گھاس اور لکڑیاں بھیگنے کی وجہ سے بھاری ہو گئی تھی۔ ہماری کشتی کنارے کے ساتھ لگ کر جا رہی تھی۔ ہم کناروں پر پیدل بھی چل سکتے تھے، لیکن اس خیال سے پیدل چلتے چلتے تھک جائیں گے اور سانپوں کے کاٹنے کا بھی خطرہ ہے، ہم کشتی میں ہی بیٹھے رہے۔ ہم نے یہی سوچا کہ جتنا راستہ ہم طے کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ کی بنی اس کشتی پر ہی طے کریں، مگر اب ایک ایسا حادثہ ہوا، ہمیں کشتی چھوڑنی پڑی۔ کشتی کی لکڑیاں اور گھاس ایک طرف سے پانی میں ڈوب گئی۔ میں دوسری طرف ہوا تو کنارے پر سے شراب کی آواز کے ساتھ کوئی شے پانی میں گری۔ سوسن نے چلا کر کہا، مگرمچھ۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، ایک چوڑے نتھروں اور لمبے نوکیلے دانتوں والا مگرمچھ پانی کو چیرتا منہ کھولے ہماری طرف آ رہا تھا۔ میں پانی میں چھلانگ لگانے لگا کہ سوسن نے میرا بازو پکڑا اور کہا، پانی میں مت کودنا عمران۔ اتنے میں مگرمچھ نے ہماری کشتی کے ساتھ زور سے ٹکر ماری۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی، کشتی کنارے کے ساتھ لگ کر چل رہی تھی۔ ٹکر لگتے ہی ہم اچھل کر کنارے پر جا گرے۔ مگرمچھ نے کشتی کو توڑ دیا۔ جب اس نے دیکھا شکار کنارے پر چلا گیا ہے تو وہ کنارے کی طرف لپکا، مگر اتنی دیر میں ہم وہاں سے بھاگ چکے تھے اور درختوں میں جا کر چھپ گئے۔ سوسن کا رنگ پیلا تھا، خوف سے اس کا سانس پھول گیا۔ میں نے کہا، ہمیں ریوالور اور مشین گن کا خیال نہ آیا۔ سوسن بولی، مگرمچھ کی کھال پتھر جیسی ہوتی ہے، اس کے اوپر والے حصے پر گولی کا اثر نہیں ہوتا، مگرمچھ کا صرف پیٹ نازک ہوتا ہے۔ پھر اس نے اپنے ایک رشتہ دار بہادر لڑکے کا قصہ سنایا۔ وہ ندی میں اترا ہی تھا کہ ایک مگرمچھ نے اس پر حملہ کیا۔ لڑکے کی کمر میں لمبا خنجر لگا تھا۔ مگرمچھ اتنی تیزی سے آگے آیا کہ لڑکے کو سنبھلنے یا بھاگنے کا موقع نہ ملا۔ اس نے اپنا بھیانک منہ کھول کر لڑکے کو ثابت کا ثابت پیٹ میں نگل لیا۔ اس کے بعد کا واقعہ یوں لڑکے نے سنایا کہ مگرمچھ کے پیٹ میں جاتے ہی اس کا دم گھٹنے لگا، مگر اس نے اپنے ہوش و حواس قائم رکھے۔ اسے اپنے خنجر کا خیال آیا۔ خنجر نکال کر اس نے مگرمچھ کی انتڑیاں کاٹتے ہوئے پیٹ کو نیچے سے پھاڑ ڈالا اور وہ پانی میں پھسل کر آ گیا۔ مگرمچھ کے خون سے ندی کا پانی سرخ ہو گیا۔ مگرمچھ مر کر الٹا ہو گیا۔ میں نے یہ واقعہ سنا اور کہا، اگر میرا دوست ریحان یہاں ہوتا تو وہ اپنی گردن پر ہاتھ پھیر کر کہتا، مائی وڈی تیری گپ۔ سوسن نے پنجابی کے الفاظ سن کر کہا، یہ تمہاری مادری زبان ہے؟ ہاں، یہ ہماری پیاری اور میٹھی زبان پنجابی ہے۔ یوں ہی باتیں کرتے ہم جنگل میں جا رہے تھے۔ ندی کا پارٹ پھر چھوٹا ہو گیا۔ شام کے سائے درختوں میں اتر رہے تھے۔ ہم کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھے جہاں ہم رات بسر کریں، کیونکہ جنگل میں رات کو سفر کرنا خطرناک تھا۔ ویسے بھی ہم تھک چکے تھے، بھوک سے بھی تنگ آ چکے تھے۔ پہلے تو ہم نے درختوں کے پھل توڑ کر کھائے، ندی کا پانی پیا، پھر ایک جگہ درختوں کے نیچے گھاس پر بیٹھ کر سوسن نے کہا، رات زمین پر بسر کرنے میں خطرہ ہے کہ شیر یا اژدہا حملہ کر دے۔ میرا خیال ہے ہمیں کسی درخت پر چڑھ کے سونا چاہیے۔ پاس ایک درخت کی شاخیں کافی نیچے جھکی تھی۔ کہنے لگی، کیوں نہ ہم اس درخت پر جگہ بنا کے رات بسر کریں؟ یہاں سانپ اور چوٹے بھی نہیں ہیں، زمین کافی حد تک صاف ہے۔ میں درخت پر چڑھنے کے بعد سونے کے لیے شاخوں کو آپس میں باندھنے لگا۔ سوسن درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ آخر ہم نے اتنی جگہ بنائی کہ ہم دونوں ایک ایک شاخ پر لیٹ کر رات بسر کر سکیں۔ جب رات ہوئی، جنگل میں چاند اوپر نکلا، اس کی روشنی درختوں سے چھن کر نیچے آنے لگی۔ سوسن نے بتایا، چاندنی راتوں کی روشنی میں سانپ، مکڑیاں اور گرگٹ باہر نہیں نکلتے، مگر مچھر ہمیں بہت تنگ کر رہے تھے۔ اتنا بڑا مچھر میں نے افریقہ کے جنگلوں میں بھی نہیں دیکھا۔ ہم نے اپنے اوپر پتوں سے بھری شاخیں کر لیں۔ رات کے 10 بجے تک ہم باتیں کرتے رہے، پھر مجھے نیند آ گئی۔ سوسن ابھی تک جاگ رہی تھی۔ آدھی رات گزر چکی تھی کہ سوسن نے مجھے جگایا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، کیا بات ہے، کوئی اژدہا تو نہیں ہے؟ اس نے کہا، ادھر دیکھو ندی میں۔ سوسن سرگوشی میں بول رہی تھی۔ میں نے درخت کی شاخوں کو پرے ہٹا کر ندی کی طرف دیکھا، وہاں جل پری پانی سے باہر نکل کر کنارے پر بیٹھی تھی۔ اس کے لمبے بال اس کے شانوں سے چپکے تھے۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہ تو وہی جل پری ہے، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ وہ اسے پکڑنا چاہتا تھا۔ سنو، سوسن ایک طرف کان لگا کر بولی، یہ کیسی آواز ہے؟ آواز
थोड़ी दूर से करीब हो रही थी, फिर साफ सुनाई देने लगी। ये पानी में कश्ती के चप्पों की आवाज थी। चांदनी रात में नदी का पानी और जलपरी साफ दिखाई देते थे। क्या देखते हैं, सामने से एक छोटी कश्ती आ रही है। इसमें 2 आदमी बैठे थे। इनके धुंधले खाके साफ नजर आते थे। वो कश्ती चलाते किनारे पर इस जगह आके रुक गए जहाँ जलपरी बैठी थी। जलपरी खामोश और बेहिस बैठी थी। इससे कोई हरकत न की। एक आदमी के घुटनों पर रेडियो ट्रांसमीटर किस्म का डब्बा रखा था, जिसके स्विच वो दबा रहा था। फिर जलपरी के सीने पर नीली नीली रोशनी जलने बुझने लगी। दूसरा आदमी कश्ती से उतरकर जलपरी के पास आया। इसने जलपरी के एक बाजू को ऊपर उठाकर दाएं बाएं हिलाया और मैं ये देखकर डर गया कि जलपरी का बाजू इस आदमी के हाथ में आ गया। उसने जलपरी का बाजू अलग रख दिया। कश्ती वाले आदमी ने कुछ पुर्जे पकड़ाए जिनको जलपरी के बाजू के अंदर फिट किया गया। इसके बाद जलपरी का बाजू जिस्म के साथ लगाया गया। बगल में लगा बटन दबा दिया। बटन दबाते ही जलपरी में जान पड़ गई। वो गर्दन हिलाने लगी, अपने बाजू को ऊपर नीचे करने लगी। कश्ती वाला आदमी वायरलेस सेट मुंह के साथ लगाकर पीछे किसी से बात कर रहा था। इसकी आवाज हम तक नहीं आती थी, अल्फाज भी समझ न आते थे। दूसरा आदमी किनारे पर खड़ा जलपरी को हरकत करते देख रहा था। फिर इसने जेब से छोटा ट्रांसमीटर निकाला, इसे मुंह से लगाकर बुलंद आवाज में बात करने लगा। वो चूंकि हमारे करीब था, इसकी आवाज हम तक आती थी। वो ब्राजील की जबान में बात कर रहा था, जिसको सोसन पूरी तरह समझती थी। मैंने सोसन की तरफ देखा। इससे मेरे कान में कहा, ये कोई खतरनाक साजिश की जा रही है। क्या? कैसी साजिश? मैंने जल्दी से पूछा। चुप रहो, उसने मेरे होंठों पर उंगली रख दी। किनारे पर जो आदमी खड़ा था, इसकी गर्दन उसे पीछे मोड़ कर देखा। शायद इसे जंगल में कुछ शक हो रहा था। कुछ सेकंड की खामोशी में वो जंगल को तकता रहा। फिर सर झटक कर इसने ट्रांसमीटर जेब में रखा, कश्ती में जा बैठा। कश्ती वहां से चल पड़ी। थोड़ी देर के बाद वो नजरों से ओझल हो गई। जलपरी अभी तक किनारे पर बैठी अपनी गर्दन को दाएं बाएं हिला रही थी जैसे कठपुतली हो। जिसने पानी में छलांग लगाई। मैंने सोसन से पूछा, ये लोग क्या कह रहे थे? जलपरी तो कोई मशीनी औरत लगती है। हाँ, सोसन बोली, ऐसा ही है। ये लोग क्यूबा की हुकूमत के जासूस हैं और ब्राजील में किसी खतरनाक मिशन पर आए हैं। मैंने सोसन से कहा, हमें उनसे क्या लेना? चुपके से सो जाओ। दूसरों के फटे में पहले भी टांग अड़ाकर हम देख चुके हैं। मैं इस तरह हमेशा मुसीबत में फंस जाता हूँ। सोसन बोली, नहीं इमरान, मैं कबूतर की तरह आंखें बंद नहीं कर सकती। ऐसा लगता है ये लोग मेरे मुल्क को बड़ा जबरदस्त नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ आए हैं और इस जलपरी के अंदर उन्होंने कोई ऐसी मशीन लगाई है जो वक्त आने पर तबाहकुन शुआएं खारिज करेगी और जो इनको इस इलाके की फिजा के बारे में पूरी पूरी रिपोर्टें देती रहती है। मैं चुपके से सोसन की बातें सुन रहा था। जब मैंने कोई जवाब न दिया तो सोसन दरख्त से उतरते हुए बोली, मैं जलपरी को तलाश करके इसके अंदर लगी मशीन को तबाह करूंगी। मैं इसे देखता ही रहा। वो दरख्त से उतरकर नदी की तरफ चल पड़ी। अगर वहां रेहान होता तो जरूर कहता, माई जी किधर पे लगे जांदे हो, सानू किते मरवा ना देना। मुझे भी मजबूर होकर सोसन के पीछे चलना पड़ा। नदी खामोश थी। जलपरी पानी में गुम हो गई। सोसन इस जगह खड़ी नीचे झुक कर देख रही थी जहाँ थोड़ी देर पहले जलपरी बैठी थी। चांदनी खुली थी, जंगल सुनसान था। मैंने करीब जाकर कहा, सोसन, जलपरी पानी में गायब हो गई। अब वो हमें नहीं मिलेगी। वैसे भी जलपरी की भाग दौड़ इन जासूसों के हाथ में है। वो इनके इशारों पर काम करती है। भला वो हमारे पास कैसे आएगी? सोसन नदी की लहरें तक रही थी। इमरान, मेरे वतन को खतरा है। ये लोग कोई बहुत बड़ा खतरनाक गिरोह हैं। ये लोग मेरे मुल्क को बड़ा जबरदस्त नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं ये गवारा नहीं कर सकती। मुझे अपने वतन और वतन के लाखों बहन भाइयों को तबाही और बर्बादी से बचाना है। तुम क्या कर सकती हो सोसन? जलपरी गायब हो गई है। वो लोग अपना काम करके चले गए हैं। मेरी बानो, वापस शहर जाकर बेशक पुलिस को बता देना। वो तो मैं रिपोर्ट करूंगी, मगर मैं इस एक्ट में जलपरी का सुराग लगाना चाहती हूँ ताकि इसे तबाह करूं। मैंने कहा, ये काम मुश्किल है। हम पानी के अंदर कहाँ इसे तलाश करेंगे? सोसन नाउम्मीद होकर कहने लगी, तो फिर हमें जितनी जल्दी हो सके शहर पहुंचकर पुलिस को खबर करनी चाहिए ताकि मुल्क में तबाही को फैलने से रोका जाए। मैंने कहा, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। वो भी अगर हमें कोई कश्ती मिल जाए, क्योंकि पैदल चलने में हमें देर लगेगी। फिर वही कश्ती बना लेते हैं। इतना कहकर सोसन ने झाड़ियों और पत्तों को इकट्ठा करना शुरू किया। सोसन बड़ी वतन से मोहब्बत करने वाली लड़की थी। अपने वतन की खातिर वो जान कुर्बान करने पर तैयार थी। हमने बड़ी मेहनत से गोल कश्ती तैयार की। इस पे बैठ के अपना सफर शुरू किया। चांदनी रात की खामोशी में हमारी घास फूस की कश्ती अपने आप लहरों पर बह रही थी। नदी आगे जाकर जंगल में एक तरफ घूमी। किनारे के साथ घने दरख्त थे। इन दरख्तों में कहीं गहरा अंधेरा था, कहीं चांदनी छनकर आती थी। कई जगह पर हमें शेर की गरज सुनाई थी। सोसन की आंखों में नींद नहीं थी। वो जाग रही थी, मैं भी जाग रहा था। रात ढलने लगी। चांद मगरिब की तरफ चला गया। एक जगह कुछ गिरगिट बकरी जितने बड़े बड़े हमें नजर आए। वो हमारे साथ साथ किनारे पर भागने लगे। सोसन ने कहा, ये पानी में नहीं उतरेंगे, घबराओ नहीं। जब वो थक गए तो खुद ही जंगल में गायब हो गए। एक दरख्त पर हमें बहुत बड़ा सांप नजर आया। इसने अपने मुंह में गिरगिट पकड़ रखा था। वो इसे आहिस्ता आहिस्ता निगल रहा था। ये सारे मंजर देखते हम आगे बढ़ रहे थे। पौ फटने लगी। सुबह का हल्का हल्का उजाला हुआ। हमें दूर से नदी के किनारे एक झोपड़ा दिखाई दिया। सोसन ने कहा, हो सकता है यहाँ दुश्मन के जासूस हों, इसलिए हमें इस जगह रुक कर जांच पड़ताल करनी है। हमने कश्ती एक तरफ किनारे के साथ लगाई। किनारे पर उतर कर इसे ऊपर खींचा और
चुके चुके दबे कदमों से झोपड़ी की तरफ बढ़ गए। झोपड़ी में अंधेरा था, कोई आवाज न आती थी। हम करीब पहुंचकर रुक गए। मैंने सुसन से कहा, मैं आगे जाता हूँ। सुसन को पीछे छोड़कर मैं घास पर झुक गया और बकरे की तरह चलता झोपड़ी के दरवाजे की दूसरी तरफ आया। मैंने झोपड़ी की घास फूस की दीवार से कान लगाया। अंदर खामोशी थी, कोई आवाज न आती। मैं दीवार के साथ आगे बढ़ा। दरवाजा बंद था। ये दरवाजा भी बांस की शाखों को जोड़कर बनाया गया। मैंने दरवाजे को खोला। अंदर से किसी ने कोई आवाज न थी। मैंने झांक कर देखा, झोपड़ी खाली थी। मैंने आहिस्ता से सीटी पे जाकर सुसन को बुलाया। हम झोपड़ी के अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। लकड़ी का एक लंबा संदूक पड़ा था, इस पर ताला लगा था। हमने पत्थर मारकर ताला तोड़ा। संदूक खोला तो अंदर से एक ट्रांसमीटर, एक रेडियो सेट, एक तार का गुच्छा, एक तेजाब की बोतल और एक चार्ट मिला। चार्ट एल्युमिनियम का था जिस पर कोई नक्शा उभरा था। हम चार्ट को लेकर झोपड़ी से बाहर आए। सुबह हुई तो इसकी रोशनी में हमने चार्ट को देखा। इस पर ब्राजील के सबसे बड़े बोगाटा डैम का नक्शा बना हुआ था। सुसन ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। माय गॉड, ये लोग बोगाटा डैम को तबाह करने की स्कीम बनाते हैं। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने पूछा। सुसन ने चार्ट पर एक जगह उंगली रखकर कहा, इस निशान को देखो। ये सुर्ख निशान तुम्हें इस नक्शे पर कई जगह पर नजर आएगा। ये वो मकाम है जहां से पानी के अंदर ही अंदर सफर करने वाला मिसाइल आएगा और फिर डैम के नीचे सबसे मजबूत दीवार के साथ टकराकर इसे तबाह कर देगा। इसका मतलब है जब ये डैम टूटेगा तो सारा का सारा पानी शहर में तूफान की तरह आ जाएगा और हमारे मुल्क के खेत, बाग, आबादियां तबाह हो जाएंगी, बिजली बंद हो जाएगी, कारखानों में काम रुक जाएगा, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, रेल और कारें रुक जाएंगी। यूं हमारा मुल्क तबाही के किनारे पहुंच जाएगा। सुसन ने इतनी जल्दी ये तबाही की बातें बयान की कि मैं इसका मुंह देखता रहा। वो भी ऐसी कर चुकी थी, इन तमाम बातों को जानती थी। मैंने कहा, ये बड़ी खौफनाक स्कीम बना रखी है उन लोगों ने, मगर ये लोग कौन हैं? इन्हें इस तबाही से क्या मिलेगा? सुसन ने कहा, हो सकता है ये लोग क्यूबा की हुकूमत के इशारे पर ये सब कुछ कर रहे हों। वही हमारे मुल्क को तबाह करना चाहते हैं। अब हम क्या करें? सवाल यह है कि वो मिसाइल कहाँ है जो इस डैम के साथ टकराकर इसे बर्बाद करेगा। इसका पता लगाना होगा। अचानक मैंने चौंक कर कहा, कहीं ये जलपरी तो मिसाइल नहीं जिसको ये लोग कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल कर रहे हैं कि पानी के अंदर ही अंदर सफर करता एक दिन वो गाढ़ा डैम से जा टकराए। सुसन की आंखों में चमक पैदा हुई। शायद ऐसा हो, मगर हम इस जलपरी मिसाइल को कैसे तलाश करें? कहाँ तलाश करें? मैंने कहा, हमें जितनी जल्दी हो शहर पहुंचकर पुलिस और फौज को इत्तला करनी चाहिए। जलपरी मिसाइल को तलाश करने में वक्त जाया नहीं करना चाहिए। ये काम फौज खुद करेगी। ठीक है, और निकल चलते हैं। मैंने सुसन के हाथ से चार्ट लेना चाहा तो वो मेरे हाथ से टकराकर नदी में गिर गया। सुसन ने चीख कर कहा, इसे डूब देना देना, हमारे पास यही एक सबूत है। मगर चार्ट नदी में डूब गया। मैंने पानी में छलांग लगाकर गोता लगाया और नीचे उतरकर चार्ट को ढूंढने लगा, मगर पानी इस कदर गदला और रेतीला था कि कुछ नजर न आता। मैंने सर पानी से बाहर निकाला तो सुसन ने एक बार फिर चीख कर कहा, इमरान बचो। एक मगरमच्छ किनारे से उतरकर पानी को चीरता मेरी तरफ आ रहा था। मैंने बड़ी तेजी से किनारे की तरफ तैरना शुरू किया। मगरमच्छ ने अपनी रफ्तार तेज कर दी। वो बिल्कुल मेरे पाँव को अपने जबड़ों में पकड़ने वाला था कि सुसन ने मुझे किनारे पर खींच लिया। मगर मगरमच्छ भी बाहर आ गया। इस अरसे में हम दोनों भागकर दरख्त पर चढ़ चुके थे। मैं हाँफ रहा था। सुसन का रंग जर्द था। हम मौत के मुंह में जाते जाते बचे। मगरमच्छ इतना बड़ा था कि वो एक ही बार में हम दोनों को हड़प कर जाता। कुछ देर हम दरख्त पर बैठे रहे। जब मगरमच्छ पानी में वापस उतर गया तो हम दरख्त से नीचे उतरे। पानी में सफर करने के बजाय नदी के किनारे रवाना हुए। दोपहर के वक्त नदी चौड़ी हुई। सामने एक दरिया था। ये दरिया अमेज़न था, ब्राजील का सबसे बड़ा दरिया। यहाँ सीपी और नील की तरह दुनिया का सबसे बड़ा दरिया था। सुसन ने एक गहरा सांस लेकर कहा, यही मेरे वतन का प्यारा दरिया अमेज़न है। मैं इसकी खुशबू सूंघ रही हूँ। दरिया के साथ साथ हम चल रहे थे। किनारे पर हमें एक बस्ती नजर आई। 2 कश्तियां भी दरिया की लहरों पर बह रही थी। हम खुश हुए। हमें एक स्टीमर मिला जिस पर बैठकर हम सोरान शहर की बंदरगाह पहुंचे। यहाँ से सुसन सीधी अपने माँ बाप के घर गई। इसका बाप और माँ बेटी को देखकर इससे लिपट गए। फौरन पुलिस को खबर की गई। पुलिस ने हम दोनों के बयान लिए। डाकुओं के मरने की खबर सुनकर उन्होंने लूटे हुए माल की तलाश में एक पुलिस पार्टी जंगल की तरफ रवाना की। मेरे हाथ से मिला तो इसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अस्पताल में मेरे नए सिरे से तमाम मरहम पट्टी की गई। कई इंजेक्शन लगाए गए, दवाइयाँ खिलाई गई। शाम को सुसन अपनी कार में मेरे पास होटल आई। मैंने रेहान से इसका तारुफ करवाया। रेहान ने सुसन से हाथ मिलाकर पंजाबी में कहा, सलाम अलैकुम सुसन जी। सुसन मुस्कुराकर रेहान का फिर मेरा मुंह तकने लगी। मैंने कहा, यह पंजाबी जबान में सलाम कर रहा है। ओ आई सी, ग्लैड टू मीट यू। रेहान भी हंसने लगा। वेरी ग्लैड, वेरी ग्लैड। इसके बाद हमने अपने सफर के खौफनाक वाकयात रेहान को सुनाए। इसके रोंगटे खड़े हो गए। कहने लगा, बस करो बाजी, होंदे अकल भी हैरान रह गई है और काफी परेशान है। मैंने कहा, रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो अब तुम्हें सुनाने वाले हैं। अच्छा, रेहान ने आंखें खोल दी। फिर जल्दी करो बादशाह, मेरे 3-4 गर्दन रोंगटे हाले बैठे हो या जरा इन्हों भी हैंड्सअप कर दो। जब इसको मालूम हुआ कि कोई खतरनाक गिरोह सोरान शहर के सबसे बड़े पानी के बंद बोगाटा डैम को तबाह करने वाला है तो वो दंग रह गया। सुसन ने
जल परी के बारे में भी इसे बताया कि इसे शक है कि वही डैम को तबाह करने वाला मिसाइल है और पानी के अंदर से दूर तक मार करने वाला टारपीडो बम है जो डैम की दीवार से टकराकर इसे तबाह कर देगा। रेहान सोच में पड़ गया। इसकी जासूसी की हिस्स पूरी तरह बेदार हो गई। इसने कहा, हमें ये मामला पुलिस और फौज को बता देना चाहिए अभी इसी वक्त, क्योंकि इससे मुल्क की सलामती को खतरा है। हमने सुसन के एडवोकेट बाप से भी पूरी बात की। पहले तो इसे यकीन न आया, लेकिन जब सुसन ने कसम खाकर कहा कि इसने खुद खुफिया चार्ट देखा है जिस पर डैम का नक्शा था और सुर्ख खतरे के निशान थे, तो इस वक्त इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को फोन कर दिया गया। 1 घंटे के बाद हम इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की कोठी में थे। इंस्पेक्टर जनरल ने सारी बात सुनी। मैं इसकी रिपोर्ट हुकूमत के आला अफसरों तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि ये काम वजारत दिफा और फौज का है। आप फिक्र न करें, अगर ये बात सही है तो हम तकरीबकार जासूसों को गिरफ्तार करेंगे। दूसरे दिन वजारत दाखिला में हमें तलब कर लिया गया। एक आला सरकारी अफसर सफेद सूट पहने बैठा था। इसने सुसन की सारी कहानी सुनकर नाक से खू खू की आवाज निकाल कर कहा, यंग गर्ल, तुमने जरूर कोई डरावना ख्वाब देखा है या फिर जंगल की आबोहवा और सफर की तकलीफों का तुम्हारे दिमाग पर असर हुआ है, क्योंकि हमारे बगाड़ा डैम को कोई खतरा नहीं। मैंने कहा, मगर जनाब, हमने खुद तकरीबकार गोरीलों को देखा है। जल परी का बम पानी के अंदर ही अंदर डैम की तरफ पड़ रहा है। अफसर मुस्कुराया। जल परियां इस जमाने में नहीं होती, पर खुदा तुमने जंगल में कोई ख्वाब देखा है। तुम लोग अमेज़न के जंगलों को नहीं जानते। वहाँ की आबोहवा ऐसी है कि इंसान के दिमाग में अजीब अजीब तस्वीरें उभर आती हैं। हम एक दूसरे का मुंह तकने लगे। रेहान ने पंजाबी जबान में कहा, पारी ये सानू मरवाएगा। इस अफसर के दफ्तर से नाकाम होकर हम सोरान सूबे के गवर्नर से मिलने की कोशिश करने लगे। मालूम हुआ वो रेओडी जींसों के दौरे पर गया हुआ है। हमने फौज के जनरल से मिलने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई। इसने हमारी कहानी सुनकर कहा कि डैम को खतरा नहीं। फिर हमारी किसी मुल्क से क्या दुश्मनी, किसी को क्या पड़ी है कि हमारे डैम को तबाह करे। फिर जल परी मिसाइल, हाँ, नामुमकिन है। तुम लोगों के दिमागों पर जंगल की आबो हवा का असर है। इस वक्त सुसन ने कहा, काश हमारे पास वो चार्ट होता जो नदी में गिर गया। हम वापस आ गए। 2 दिन गुजर गए। हमने अखबार वालों को सारी दास्तान बयान करना चाहिए, मगर हुकूमत के अफसरों ने हमें मना कर दिया। सुसन बड़ी परेशान थी। इसे मालूम था कि अगर कुछ किया न गया तो डैम तबाह हो जाएगा। इस शहर के पानी से एक भयानक सैलाब बन जाएगा। शहर में एक आदमी, औरत, बच्चा जिंदा न बचेंगे। रेहान ने कहा, हमें मासूम बच्चों, बूढ़ों और औरतों को तबाही से बचाना है, मगर हम इन्हें कैसे बचा सकते हैं? सुसन ने चीख कर कहा। रेहान ने कहा, हम तीनों मिलकर आने वाली तबाही का मुकाबला करेंगे। हम जलपरी मिसाइल को तलाश करके इसे पानी के अंदर तबाह कर देंगे। ये बहुत मुश्किल काम था, लेकिन हमें हर हालत पे करना था, क्योंकि हजारों इंसानों की जिंदगी और मौत का सवाल था। हम एक दूसरे के हाथ पर हाथ रखकर कसम खाएंगे, जब तक इस मुल्क के लोगों को आने वाली तबाही से नहीं बचाएंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। इसके बाद जो कुछ हमने किया, जो जो मुश्किलें हमें पेश आई, वो मैं आपको अपने अगले खत में बयान करूंगा। अब इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। आपका भाई इमरान, ब्राजील, जनूबी अमेरिका। डियर सिस्टर, अस्सलाम वालेकुम। हम बड़े परेशान थे। काम मुश्किल था। हम तीनों अकेले थे, बेयारू मददगार थे। कोई हमारी मदद को तैयार न था। किसी को हमारी बात पर यकीन न आता। अगर यकीन आता तो वो हमारी मदद करने पर तैयार न होता। सोसन ने कहा, चलो तुम्हें पहले चलकर डैम दिखाती हूँ, जिसको हमारे दुश्मन तबाह करने की स्कीम बना चुके हैं। ये डैम शहर से 15 मील दूर पहाड़ियों में था। ये एक बड़ा डैम था। दरिया अमेज़न के पानी को एक तरफ से काटकर पहाड़ों के दरमियान अजीम शान वादी में जमा किया गया। इतनी बड़ी झील थी कि इसमें छोटे जहाज चलते थे। इस सारी की सारी झील के पानी को बंद की बहुत ही मजबूत और कोई 150 मंजिला ऊंची दीवार ने रोक रखा था। इस दीवार में बड़ी बड़ी गोल सुरंगों के दरवाजे थे, जिनसे पानी तूफानी रफ्तार से बड़े पहियों पर गिरकर इतनी गर्दिश देता है, जिसकी गर्दिश से टरबाइन यानी बड़ी मशीन चलती है और बिजली पैदा होती है। बिजली तमाम मुल्क की फैक्ट्रियों, कारखानों और घरों को सप्लाई होती। हमारे पाक वतन का तरबेला डैम दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। बुगाड़ा डैम इससे थोड़ा छोटा है, लेकिन इसे देखकर हमें चक्कर आ गया। रेहान ने सर पकड़ लिया और बोला, ओए होए, ये टूट गया तो सारा मुल्क डूब जाएगा। इसमें कोई शक नहीं था कि इतने बड़े डैम के तबाह हो जाने से मुल्क के तबाह हो जाने का शदीद खतरा था। सबसे पहले इसके आसपास 2-3 मील तक तो शहर में पानी जरूर भर जाएगा और पूरे शहर डूब जाएंगे। खुदा जाने कितने हजार इंसान इस पे गरक हो जाएं। मैंने सुसन से कहा, क्या इसे सिर्फ एक मिसाइल तबाह कर सकता है? सुसन ने कहा, हो सकता है वो मिसाइल एटमी मिसाइल हो। अगर इस जलपरी वाले मिसाइल में छोटा सा एटम बम रख दिया गया तो फिर वो इस डैम के ऊपर अक्सर उड़ा देगा। दुश्मनों ने ऐसा ही किया होगा। हमें इस मिसाइल को, इस तबाह करने वाली जलपरी को, इस डैम की दीवार के करीब आने से पहले हर हालत में रोकना है। अगर ऐसा हो गया तो इस मुल्क पर तबाही नाजिल हो जाएगी। रेहान कहने लगा, हो सकता है वो जलपरी इस झील में दाखिल भी हो चुकी हो। हम इसे कैसे और कहाँ तलाश करेंगे? सुसन ने कहा,
यही तो हमें गौर करना है, यही तो हमें सोचना है। तुम्हारी क्या राय है सुसन, हमें क्या करना है? हम डैम की बाई जानिब एक पहाड़ी पर खड़े थे। हमारे सामने और नीचे दूर तक झील का पानी ठाटे मारता था। दूर एक जहाज दरिया की तरफ जाता था। सुसन गहरी सोच में डूब गई। वो परेशान थी क्योंकि इसकी बात किसी ने नहीं सुनी थी। अगर सुनी तो एतबार ना किया। रेहान बोला, मेरा ख्याल है हमें कश्ती लेकर दरिया की तरफ पीछे को सफर करके एटमी जलपरी को वहां काबू कर लेना चाहिए, यानी इससे पहले कि वो दरिया के रास्ते झील में आकर डैम को तबाह करे, हमें इसे नदी में ही तबाह कर देना चाहिए। मैंने कहा, मगर तुमने अभी तो कहा हो सकता है जलपरी डैम की झील में दाखिल हो गई हो। रेहान कहने लगा, तो क्या हम हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहें और हजारों लाखों बच्चों को मरने के लिए छोड़ दें? हमें कुछ ना कुछ तो करना है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कश्ती लेकर जलपरी को तलाश करूं। सुसन ने कहा, जो लोग मेरे मुल्क में आकर जलपरी तारपीडो बम से डैम को तबाह करना चाहते हैं, उन्होंने यहाँ कहीं न कहीं अपना खुफिया ठिकाना बनाया होगा जहाँ से वो इस पानी के बम को कंट्रोल करते होंगे। रेहान ने चुटकी बजाकर कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने माई। सुसन ने मुस्कुराकर पूछा, ये माई क्या होता है? अगर मैं सुसन को बता देता कि माई पंजाबी जबान में बूढ़ी औरत को कहते हैं, तो वो मार मार कर रेहान का सर यकीनन गंजा कर देती। रेहान की आदत ऐसी ही थी, वो मुसीबत में भी मजाक से बाज न आता, और एक तरह से अच्छी बात थी। इस तरह से इसका हौसला बुलंद रहता। मैंने जल्दी से कहा, सुसन, माई हमारी जबान में खूबसूरत लड़की को कहते हैं। ये सुनकर सुसन मुस्कुराने बल्कि शर्माने लगी। रेहान ने सर पर हाथ मारकर कहा, बिल्कुल बिल्कुल माई जी। मैंने कहा, सुसन की बात पर गौर करो रेहान। रेहान सर को खुजाकर बोला, मैं गौर कर रहा हूँ बाजी। हमें डैम को तबाह करने वाले गुरीलों का खुफिया ठिकाना तलाश करना है, ताकि जहाँ से वो तारपीडो बम को कंट्रोल कर रहे हैं, इसका कंट्रोल खत्म कर दिया जाए। बम जहाँ कहीं भी होगा अपने आप बेकार हो जाएगा। वंडरफुल आइडिया, रेहान बोला, मगर सवाल ये है, इन लोगों का कंट्रोल टावर कहाँ है? जरूर इसी जगह होगा जहाँ से ये नदी अमेज़न दरिया में गिरती है। सुसन ने कहा, हमने गौर किया तो इसका ख्याल ठीक था। फिर हमें वापस चलना चाहिए इस मुकाम पर जहां दरिया में नदी गिरती है। हम डैम की पहाड़ी से उतरकर मैदान में आए। यहाँ डैम के कुछ दफ्तर थे जिनके बाहर झील किनारे किश्तियां और स्टीमर खड़े थे। हमने एक छोटी कश्ती खोली, इसमें सवार हुए और इसका इंजन चलाकर वापस दरिया की तरफ रवाना हुए। झील में से हम जल्दी ही निकल गए। दरिया का पाट बहुत ज्यादा चौड़ा था। इसका दूसरा किनारा बहुत दूर था। दूसरे किनारे की तरफ बहुत छोटे नजर आते थे, अगरचे धूप निकली थी, लेकिन कुछ बादल आसमान के किनारों पर जमा थे। सुसन ने बताया कि हो सकता है शाम तक बारिश शुरू हो जाए, क्योंकि मौसम बारिशों का शुरू होने वाला था। कश्ती ले जाते हमें किसी ने नहीं देखा था। अगर देखा भी होता तो वो यही समझता कि हम झील के क्लब के मेंबर हैं, क्योंकि यहाँ अक्सर कश्तियां क्लब की थी जिनके मेंबर झील में सैर करते। कश्ती के पीछे एक छोटी सी मोटर लगी थी जो फटफट करती चल रही थी। पेट्रोल के 2 डब्बे भी कश्ती में पड़े हुए थे। जब हम दरिया में काफी आगे जंगल के करीब आए और दूर से वो नदी दिखाई देने लगी जहां हमें जाना था, तो सुसन कहने लगी, इस कश्ती की आवाज गुरीलों को खबरदार कर देगी, इसलिए मेरा ख्याल है इसकी मोटर बंद करके हमें चप्पू चलाने चाहिए। कश्ती में चप्पू भी पड़े थे। अगर कहीं मोटर फेल हो जाए या तेल खत्म हो जाए तो कश्ती को चप्पू चलाकर किनारे तक लाया जा सकता था। बड़ा मुनासिब ख्याल था। हमने मोटर को बंद किया, चप्पू से कश्ती चलाने लगे। हम दरिया किनारे चल रहे थे, नदी आगे थी। हम कश्ती लेकर नदी में दाखिल हुए। यहाँ नदी चौड़ी थी। जूं हम नदी के अंदर की तरफ गए, नदी का पाट चौड़ा होता गया। हम जंगल में आ गए तो सुसन ने कहा, जरूर इसी जगह पर कहीं गोरीलों का खुफिया ठिकाना होगा। रेहान ने कहा, हमें कश्ती को नदी में से निकालकर झाड़ियों में छुपाना चाहिए। हमने इसी वक्त कश्ती को नदी से बाहर खींचा और दरख्तों के दरमियान एक जगह झाड़ियों में छुपा दिया। जंगल सुनसान था। गर्मी की वजह से हब्स था। बादल आसमान पर छा गए थे, जिसकी वजह से हवा बंद हो गई। हमने किनारे से जरा दूर हटकर नदी के साथ साथ ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दिया। खुश्क पत्ते हमारे पाँव के नीचे चरचरा रहे थे। इनकी आवाज पैदा हो रही थी। सुनकर सुसन ने कहा, ये आवाज खतरनाक हो सकती है, हमें इसका कुछ इलाज करना चाहिए, नहीं तो दुश्मन होशियार हो जाएगा। रेहान ने कहा, माई जी, तो क्या हम दरख्तों पर बंदरों की तरह चलना शुरू कर दें? सुसन ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, कम अज कम मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, ये जरूर है कि हम इन दरख्तों से बचकर इस तरफ जहाँ घास ज्यादा घनी है उधर चलते हैं। हम खुश्क पत्तों को छोड़कर लंबी लंबी घास वाले इलाके की तरफ आए। नदी हमसे बाएं जानिब कोई 20-25 फीट के फासले पर थी। कमाल की बात यह थी कि जलपरी हमें इसके बाद भी नदी में नजर न आई। बादल थोड़ा सा गरजा। सुसन ने दरख्तों के ऊपर तकते हुए कहा, बारिश आने वाली है। रेहान बोला, बड़े घने दरख्त हैं, यहाँ बारिश ज्यादा नहीं आएगी। इस तरह हम बातें करते चले जा रहे थे। हमें पानी में कश्ती के चप्पू की छप छप की आवाज सुनाई दी। हमारे कान खड़े हुए। सुसन ने हमें जल्दी से एक दरख्त के पीछे खींच लिया। खामोश रहो, इधर देखो नदी की तरफ। नदी में ऊपर पहाड़ी जंगलों की जानिब से एक छोटी सी डोंगी यानी मोटर कश्ती आ रही थी, यानी इसमें 2 आदमी बैठे इसे चला रहे थे। कश्ती के बीच में एक जर्द रंग का ड्रम रखा था। आमतौर पर इस किस्म के ड्रमों में पेट्रोल होता है। कश्ती के आगे किनारे पर जब कश्ती जाकर रुकी, दोनों आदमी कश्ती से बाहर उतरे। वो आपस में बातें करते हुए ड्रम को नीचे उतारने लगे। उनकी आवाजें हम तक बहुत धीमी धीमी आ रही थी, इसलिए
ہم ان کی باتیں نہ سن سکے۔ وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے ڈرم نیچے اتار رہے تھے۔ ان کی الفاظ ہماری سمجھ نہ آتے تھے۔ ڈرم انہوں نے جنگل کے کنارے میں ایک درخت کے نیچے چھپایا۔ ان کے کندھوں کے ساتھ ریوالور لٹک رہے تھے۔ ان کے کپڑے پرانے اور مشین کے تیل میں بھرے ہوئے تھے۔ صاف لگتا تھا وہ کسی مشین پر کام کر کے آ رہے ہیں۔ میں نے سوسن سے کہا، کیا خیال ہے، ہمیں ان کا پیچھا کرنا چاہیے؟ ہاں ضرور، یہ اسی جگہ جا رہے ہیں جہاں ان کے دوسرے ساتھی چھپے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کے لہجے اور انداز سے اندازہ لگا لیا کہ یہ کیوبا کے گوریلو کا لہجہ ہے۔ ریحان بولا، تو پھر ہمیں ان کا پیچھا کرنا چاہیے، ورنہ تو یہ آگے نکل جائیں گے اور غائب ہو جائیں گے۔ کچھ فاصلہ رکھ کے ہم نے دونوں آدمیوں کا پیچھا شروع کیا۔ ایک جگہ گھنے درختوں کے نیچے پہنچ کر وہ دونوں رکے۔ ان میں سے ایک نے اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھا اور الو کی طرح کی آواز نکالی۔ اس آواز کے جواب میں جنگل کے کونے کی جانب سے اس قسم کے الو کی آواز آئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا اور جدھر سے آواز آئی تھی ادھر کو چل پڑے۔ ہم بھی ان گوریلوں کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے۔ بادل گرجا اور جنگل میں ہوا چلنے لگی۔ سوسن سب سے آگے تھی، میں اس کے پیچھے اور ریحان میرے پیچھے تھا۔ ہمارے اوپر ایک درخت پر کسی بندر نے ہمیں دیکھ کر زور زور سے چیخنے کی آواز نکالی اور چھلانگ لگا کر دوسرے درخت پر کود گیا۔ ہم جلدی سے لمبی گھاس میں بیٹھ گئے کیونکہ بندر کی آواز پر دونوں آدمیوں نے پلٹ کر ہماری طرف دیکھا۔ ان کی شکلیں ہمیں گھاس کی لمبی لمبی شاخوں کے پیچھے سے نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے ریوالور نکال کر اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیے تھے اور خاموشی سے درخت کے نیچے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں وہی ایک بندر پھر بولا۔ اس پر وہ دونوں مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، یعنی انہیں یقین تھا کہ کوئی ان کے پیچھے نہیں ہے، بلکہ یہ بندر کی آواز سے آگے جا کر جنگل کھلا ہو گیا۔ درخت پرے پرے ہٹ گئے۔ درمیان میں ایک کھلا اونچا گھاس کا گول میدان تھا۔ ہم ایک طرف جھک کر بیٹھ گئے کیونکہ وہ دو آدمی بھی ایک جگہ کھڑے ہو گئے۔ ایک پل کے لیے وہ اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلے، پھر انہوں نے اپنے چاروں طرف دیکھا۔ جب انہیں اطمینان ہو گیا کہ کوئی انہیں نہیں دیکھ رہا، ان کا پیچھا نہیں کر رہا، تو وہ سامنے درختوں کی طرف مڑ گئے۔ ہم بھی گھاس کے اندر جھک کر آگے کو چلی۔ سامنے والے درختوں میں وہ دونوں کہیں غائب ہو گئے۔ ہم جلدی جلدی گھاس سے نکل کر ان درختوں کے قریب آ کر گھاس میں بیٹھے۔ سوسن نے آہستہ سے کہا، وہ یہیں کہیں ہوں گے۔ ریحان بولا، مجھے یقین ہے ان کا یہاں کوئی خفیہ ٹھکانہ موجود ہے۔ میں نے کہا، تمہارا مطلب ہے دال میں کہیں کچھ کالا کالا ہے؟ شٹ اپ۔ ریحان سمجھ گیا تھا کہ میں اسے مذاق کر رہا ہوں۔ میں اس دباؤ کے ماحول میں بھی شگفتگی قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ باری باری ایک ایک کر کے گھاس میں سے نکل کر درختوں کے موٹے تنوں کے پیچھے سے ہوتے ہوئے زمین پر گرے ہوئے بھاری درخت کے پیچھے آ کر چھپ گئے اور سامنے دیکھا تو ہمیں ایک ٹوٹا پھوٹا سا جھوپڑا نظر آیا۔ کان لگا کر سنا تو اس کے اندر سے کسی آدمی کے اونچے اونچے آواز میں بات کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ سوسن نے فوراً کہا، یہ وائرلیس پہ کوئی پیغام دیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس جھونپڑے میں گوریلوں کا ٹھکانہ تھا اور وہ وائرلیس پر کوئی خفیہ پیغام دے رہے تھے۔ ہماری سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہم کیا کریں۔ ہم جھونپڑے کے اندر نہیں جا سکتے تھے کیونکہ ہم نہتے تھے۔ ہمارے پاس سوائے ایک خنجر اور ایک لمبے چاقو کے کچھ بھی نہ تھا۔ ان کے پاس ریوالور تھے۔ اتنے میں وہ دونوں گوریلے جھونپڑے سے باہر آئے اور ابھی تک ان کے ہاتھ میں ریوالورز موجود تھے۔ وہ خوش نظر آتے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ وہ ہم سے تھوڑے فاصلے پر سے ہو کر گزر گئے۔ جب وہ جنگل میں کافی دور گھاس کے میدان کے دوسرے کنارے پر چلے گئے تو ہم درخت کے تنے کے پیچھے سے نکلے، الگ الگ ہو کر جھونپڑے کی طرف بڑھنے لگے۔ ہمیں یہ خطرہ تھا کہ کہیں جھونپڑے کے اندر کوئی گوریلا نہ ہو۔ میں نے پیچھے سے آ کر جھونپڑے کی پچھلی کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھا۔ پرانی گول میز کے کنارے پر وائرلیس سیٹ رکھا تھا، پاس ہی ایک کتاب اور چائے کی کیٹلی رکھی تھی اور چند پیالیاں بھی پڑی تھیں۔ جھونپڑی میں کوئی گوریلا موجود نہ تھا۔ میں نے سوسن اور ریحان کو اندر بلایا۔ جھونپڑی کی چھت کے ساتھ تاروں کے گچھے لٹک رہے تھے۔ کونے میں ایک کشتی چلانے والی پرانی موٹر تھی۔ سوسن نے وائرلیس کو غور سے دیکھا اور کہنے لگی، وائرلیس بند کر دیا گیا ہے۔ ریحان نے موٹی کتاب کو کھول کر دیکھا۔ وہ برازیل کی زبان میں لکھی اور اس کے اندر نیلے کاغذ پر ہاتھ سے بنائے گئے نقشے بھی رکھے ہوئے تھے جن پر کہیں کہیں سرخ نشان تھے۔ کتاب کے اوپر برازیل کی زبان میں کچھ لکھا تھا۔ ہم نے کتاب سوسن کو دکھائی، اس سے پوچھا، یہ کیسی کتاب ہے؟ سوسن نے کہا، یہ ٹیلی فون ڈائریکٹری ہے، خدا جانے انہوں نے یہاں کس لیے رکھی ہے جب یہاں اس کا کوئی کام نہیں، مگر اس کے اندر جو نقشے ہاتھ سے بنائے گئے ہیں میرا خیال ہے وہ بوگاتا اور ڈیم کے مختلف حصوں کے ہیں۔ پھر میں نے کہا، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ریحان کہنے لگا، کیوں نہ ہم وائرلیس پر کسی سے بات کریں، دوسری طرف کون بیٹھا ہے، کس جگہ ہے؟ ظاہر ہے بات تو برازیل کی زبان میں ہوگی، سوسن اسے سمجھ جائے گی۔ سوسن کو خیال پسند آیا، مگر میں جواب میں نہیں بول پاؤں گی کیونکہ عورت کی آواز سن کر وہ چونک جائیں گے کہ عورت کہاں سے آئی۔ میں نے کہا، تو مجھے برازیلی زبان میں ہیلو کا لفظ بتاؤ، میں انہیں یہی ہیلو ہیلو کرتا رہوں گا، دوسری طرف سے جو آواز آئے گی تم اسے سمجھ رہا۔ ریحان جاسوسوں کے انداز میں بولا، مگر ہم ایک بات بھول گئے ہیں کہ ان لوگوں کا ضرور کوئی کوڈ ورڈ یعنی خفیہ لفظ ہوگا۔ ہم وہ لفظ نہ بول پائے تو وہ سمجھیں گے کہ دشمن کے آدمی جھونپڑے میں ہیں، پھر وہ ہمیں آدمیوں کی
خبر نہیں دیں گے اور اپنے آدمیوں کو بھیج کے ہمیں قتل کرا سکتے ہیں۔ میں نے کہا کوڈ لفظ کیسے تلاش کریں؟ ریحان نے برازیل کی ٹیلی فون ڈائریکٹری دیکھنا شروع کیا۔ اچانک اس کتاب کی پشت پر کونے میں برازیل زبان میں ایک لفظ لکھا تھا جس کا مطلب اژدہا تھا۔ وہ کہنے لگی اژدہا یہاں لکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ضرور یہی ان کا کوڈ ہے۔ پھر اس نے میری طرف دیکھ کر کہا عمران جس فریکوینسی پر یہ وائرلیس لگا ہے اسی پر میں آن کرتی ہوں، تم اژدہا کا لفظ بولنا، پھر دیکھنا کہ آگے سے کیا جواب آتا ہے۔ اگر دوسری طرف سے بھی یہی لفظ بولا گیا تو پھر میں بات کروں گی۔ سوسن نے وائرلیس کا ایک بٹن دبایا اور بٹن کو نیچے کیا۔ وائرلیس سے ٹو کی آواز آنے لگی۔ سوسن نے مجھے برازیلی زبان کا لفظ اژدہا اچھی طرح یاد کرا دیا تھا۔ میں نے 2-3 دفعہ اژدہا اژدہا دہرایا۔ ادھر سے بھی کسی نے اژدہا کہا تو ہم خوشی سے اچھل پڑے۔ اس کے بعد سوسن نے مائکرو فون اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا ہیلو اژدہا۔ وہ آواز کو بھاری کر کے بول رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر ہم حیران تھے۔ یہ مردوں جیسی آواز اس نے کہاں سے اور کیسے نکالی؟ وہ کہہ رہی تھی ہیلو اژدہا، کام سب ٹھیک ہے؟ تم مجھے ایک بار پھر بتاؤ۔ اچھا بڑا اژدہا کہاں ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور سوسن نے جلدی سے وائرلیس بند کیا، پھر ہماری طرف دیکھ کر بولی ان گوریلوں نے کل رات کا وقت رکھا ہے، ٹھیک آدھی رات کو 12 بجے جل پری کا ایٹم بم ڈیم سے ٹکرا کر اس کے پرخچے اڑا دے گا۔ ریحان نے پوچھا بڑا اژدہا کون ہے؟ سوسن نے کہا یہ اس جگہ کا نام ہے جہاں سے جل پری کا ایٹم بم دریا میں داخل ہو کر اپنا رخ جھیل کی طرف موڑے گا۔ ریحان بولا اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس وائرلیس کی گفتگو سے ہمیں کیا فائدہ؟ ہمیں تو جل پری کے بم کو تلاش کر کسی راستے میں ضائع کرنا ہے۔ ہم کیسے کریں گے؟ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، کام بہت زیادہ۔ کل رات 12 بجے تک ہمیں جل پری کے بم کو تلاش کرنا ہے، اسے ناکارہ بھی کرنا ہے۔ میں نے کہا کیوں نہ ہم فوج میں جا کر خبر کریں، ان کی مدد لیں۔ سوسن بولی ان لوگوں نے پہلے بھی ہم پر اعتبار نہیں کیا، وہ ابھی نہیں کریں گے، ہمارا مذاق اڑائیں گے، خواہ وقت ضائع ہوگا۔ ہم جھوپڑی میں بیٹھ کے غور کرنے لگے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ اچانک جنگل کی طرف سے پستول کا فائر ہوا، آواز سے سارا جنگل گونج اٹھا۔ ہم تیزی سے جھوپڑے سے باہر نکل گئے اور سامنے والی اونچی گھاس میں چھپ کر بیٹھے، کیونکہ ہمارا خیال تھا یہ فائر ان لوگوں نے کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ واپس آ رہے ہوں یا انہوں نے کوئی ہرن وغیرہ شکار کیا ہو۔ فائر کی آواز کے بعد جنگل میں خاموشی چھا گئی۔ جدھر سے گولی کی آواز آئی تھی ادھر پرندے اب تک شور مچا رہے تھے، پھر وہ چپ ہوئے۔ اب ایسی خاموشی چھا گئی کہ جیسے کہیں کوئی آواز نہ ہو۔ سوسن نے خاموشی کو توڑ کر کہا ہو سکتا ہے وہ لوگ آگے نکل گئے ہوں۔ اب یہ بات سوسن کے منہ میں تھی کہ سامنے درختوں میں ہمیں وہی دونوں آدمی جھوپڑی کی طرف آتے نظر آئے، مگر ان کے ساتھ اب ایک تیسرا آدمی تھا جو لنگڑا کر چل رہا تھا۔ دونوں نے اسے سہارا دیا، وہ کھینچ کر اسے آگے لا رہے تھے۔ ظاہر تھا وہ کوئی ان کا دوست تو نہیں ہو سکتا۔ سوسن بولی یہ کسی دشمن کو زخمی کر کے پکڑ کر لائے ہیں، ہوشیار رہنا، بولنا نہیں، وہ اس کو جھوپڑی میں لا کر اس سے پوچھ گچھ کریں گے۔ دونوں گوریلے تیسرے زخمی آدمی کو جھوپڑے میں لا کر وہاں داخل ہوئے، پھر ہمیں کچھ دیر تک ان کے اونچا اونچا بولنے کی آواز آئی۔ سوسن نے کہا کہ وہ اس سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں کہ اس نے دشمن کے ٹھکانے پر بم کیوں نہیں رکھا۔ ریحان بولا اس کا مطلب ہے یہ ان کا اپنا آدمی ہے جو ان کو چھوڑ گیا تھا، یعنی جو اس کارروائی میں ان کا شریک نہیں بننا چاہتا تھا۔ سوسن کہنے لگی ہاں ایسا لگتا ہے۔ میں نے کہا پھر وہ اس آدمی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ جھوپڑی میں خاموشی چھا گئی، ہم نے اپنے کان کھڑا کیے، کچھ ہونے والا تھا۔ اچانک زخمی آدمی کی چیخ سنائی دی، وہ رحم کی بھی مانگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ریوالور کے 2 فائر ہوئے، جنگل گونج اٹھا۔ سوسن نے سرگوشی میں کہا انہوں نے اسے مار ڈالا۔ جھوپڑی میں سے وہ دونوں گوریلے باہر نکلے، تیسرے آدمی کی لاش کو گھسیٹ کر باہر لائے، جھوپڑی کے پیچھے ایک گڑھے میں پھینک دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر انہوں نے جھوپڑی میں آ کر وائرلیس پر کسی سے بات کی، وائرلیس بند کیا اور جھوپڑی سے نکل کر جدھر سے آئے تھے ادھر کو چلے گئے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے خط میں آگے کے مزید دلچسپ اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات آپ کو لکھوں گا۔ آپ کا بھائی عمران۔ برازیل، جنوبی امریکہ۔ ڈیئر سسٹر، سلام و آداب۔ گوریلوں نے لاش جنگل کے گڑھے میں پھینک دی۔ جب دونوں گوریلے نظروں سے اوجھل ہوئے تو ہم بھاگ کر گڑھے کے پاس آئے، جھک کر دیکھا زخمی آدمی کی لاش اندر اوندھے منہ پڑی تھی۔ ہم گڑھے میں اترے، گولیاں لاش کی گردن پر لگی تھی۔ اچانک لاش کے حلق سے آواز نکلی، یہ ابھی زندہ ہے۔ ریحان نے کہا۔ ہم نے لاش کو سیدھا کیا، یہ ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا جس کی چھوٹی چھوٹی مونچھوں میں سفید بال تھے، وہ مرا نہ تھا، اس کی گردن سے خون ابل کر جم گیا۔ اس نے تھوڑی تھوڑی کھلی آنکھوں سے ہمیں دیکھا، وہ کچھ کہہ رہا تھا، چونکہ وہ برازیلی تھا اس لیے سوسن نے اس کے ہونٹوں کے قریب اپنے کان کر دیے۔ وہ آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہا تھا، پھر اس نے آخری ہچکی لی، اس کی گردن ہمیشہ کے لیے ڈھلک گئی۔ ہم نے سوسن سے پوچھا لاش نے کیا کہا؟ وہ ہمیں وہاں سے اٹھا کر جھوپڑی میں لائی، کہنے لگی اس آدمی نے مرتے مرتے کہا جل پری ندی کے موڑ پر پانی کے اندر ہے۔ ریحان اچھل پڑا، یہ تو بڑی قیمتی معلومات ہے، ہمیں ابھی جا کر ندی میں اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ سوسن نے کہا یہی تو مشکل ہے، ہم اسے تباہ کیسے کریں گے؟ اس کے اندر ایٹمی مادہ ہے، وہ صرف پیچھے سے الیکٹرانک لہروں کے ذریعے ہی پھٹ سکتا ہے، یہ کوئی عام بارود کا بم نہیں جس کو ہم ہتھوڑا مار کر پھاڑ دیں گے۔ ریحان بولا تو پھر ہم کیا یوں ہی بڑے رہیں گے؟ سوسن کہنے لگی نہیں،
हम जल परी एटम बम को काबू में करेंगे और इसे पानी के अंदर ही अंदर फौजी बंदरगाह तक ले जाने की कोशिश करेंगे ताकि इसे फौज के हवाले कर दें। मैंने कहा, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जल परी को पीछे से इलेक्ट्रॉनिक लहरों के जरिए कंट्रोल किया जाता है, वो किसी भी वक्त फट सकता है। इस सूरत हाल में बड़ी तबाही होगी। सुसन बोली, एक बार हम ये बम फौज के हवाले कर दें तो वो इसको ठिकाने लगाने का इंतजाम खुद करेंगे। रेहान ने कहा, अगर वो ठिकाने लगाने से पहले फट गया तो क्या होगा? सुसन ने कहा, वायरलेस पर हमें जो खबर मिली है इसके हिसाब से ये बम कल रात 12 बजे फटेगा, यानी हमारे पास 12 बजे तक का वक्त है। मैंने कहा, हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, आओ यहाँ से निकल चलते हैं। रेहान ने कहा, लेकिन बम जल परी बम पानी के अंदर हम इसको कैसे ढूंढेंगे? हमारे पास तो गोताखोरों का लिबास भी नहीं। सुसन ने कहा, मैं कॉलेज में बेहतरीन तैराक रही हूँ, पानी के अंदर लंबा गोता लगा सकती हूँ, इसलिए मैं जल परी बम को तलाश करूंगी। रेहान ने कहा, तो फिर यहाँ से निकल चलो। ये सुनकर सुसन मुस्कुरा दी, क्योंकि वो यही समझती थी कि माई का मतलब खूबसूरत लड़की है। हम झोपड़ी से निकलकर वापस नदी किनारे इस जगह गए जहाँ हमने अपनी कश्ती छुपाई थी। आसमान बादलों में छुपा था, लेकिन खुदा का शुक्र था बारिश नहीं हुई। हमारी कश्ती झाड़ियों में इसी तरह पड़ी थी। वो दोनों कातिल गोरीले अपनी कश्ती लेकर वहां से चले गए। हमने कश्ती निकाली, दरिया के पानी में डाल दी, दरिया की तरफ रवाना हुए। काफी दिन गुजर गया, हमें भूख लग रही थी। कश्ती में हमने प्लास्टिक के लिफाफों में कुछ हॉट डॉग और सैंडविचेस रखे हुए थे, जो हमने खाए। नदी का पानी पिया और ताज़ादम होकर अपने मुहिम पर रवाना हुए। जब हम नदी के इस मुकाम पर पहुंचे जहां नदी दरिया में गिरती थी, तो हमने दूर से 4 आदमियों को देखा। वो वहां बैठे मछलियां पकड़ रहे थे। इनमें से 2 आदमी तो वही थे जिन्होंने अभी अभी झोपड़ी में एक आदमी को कत्ल किया। सोसन ने कहा, ये वही कातिल गोरीले और उनके साथी हैं। जरूर इस जगह नीचे पानी में एटमी जलपरी मौजूद है। ये लोग मछलियां पकड़ने वालों के भेस में इस खतरनाक जलपरी बम की हिफाजत कर रहे हैं। हमारी कश्ती इनके करीब हुई तो उन्होंने पहले हमें शक की नजरों से देखा, फिर इनमें से एक ने हाथ हिलाकर हमें सलाम किया और मुस्कुराया, जैसे पिकनिक मनाने वाले अक्सर लोग एक दूसरे को हाथ हिलाकर सलाम करते हैं। एक आदमी हमें घूर कर देख रहा था, फिर उसने अपने साथी से कुछ कहा। अपनी मछलियां पकड़ने वाली सुई इसे पकड़ाई और कश्ती में बैठकर हमारी कश्ती के आगे आकर इसको रोका। सोसन ने आहिस्ता से कहा, अब मारे गए। वो आदमी बोला, तुम लोग उधर किस तरफ से आ रहे हो? सोसन ने मुस्कुराकर ब्राजीली जबान में इस आदमी से कुछ कहा। इस आदमी पर कोई असर न हुआ। बाद में इसने बताया कि इसने कहा था, हम स्टूडेंट हैं, जंगल में पिकनिक मना रहे थे। ये हमारे पाकिस्तान के मेहमान स्टूडेंट हैं, हमारे मुल्क की सैर करने आए हैं। अचानक इस आदमी ने पिस्तौल निकाला और इशारे से कहा, किनारे की तरफ चलो। हमें बस एक कश्ती को किनारे पर ले आए। हम कश्ती से उतर गए। उन्होंने कश्ती अपने कब्जे में कर ली। हमें पीछे जंगल के घने दरख्तों में एक जगह ले गए। यहाँ एक चारों तरफ से बंद वैगन खड़ी थी। ये शिकारी वैगन थी। इसके बाहर एक आदमी राइफल लिए पहरा दे रहा था। सुसन ने इन्हें कहा कि वो लोग इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं, मगर इन आदमियों पर उसकी बातों का कोई असर ना हुआ। 1 मिनट के अंदर उन्होंने हमारे हाथ पीछे बांधे, मुंह में रुमाल ठूस दिए ताकि हम आवाज ना निकालें। फिर वैगन का दरवाजा खोल के हमें अंदर धकेल दिया। अंदर अंधेरा था। हम मोटर के टायरों पर गिर गए। वैगन की दीवारों की दर्जों से हल्की हल्की रोशनी आती थी। वैगन में बिजली के तारों के पुराने कुछ वायरलेस सेट और एक गोल संदूक था। हमारे मुंह बंद थे, हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे, बस नीम रोशनी में एक दूसरे का मुंह तक रहे थे। हम वैगन के फर्श पर दीवार से टेक लगाकर बैठे अपनी किस्मत को कोस रहे थे कि इस तरफ हम बेख्याली में क्यों आ गए, हमें जरा खबरदार रहना चाहिए था। सोसा ने इशारों में मुझे कहा, बाहर पहरे देने वाला सिर्फ एक आदमी है। जो लोग हमें गिरफ्तार करके लाए हैं वो वापस नदी पर जाकर मछलियां पकड़ने लगे हैं। अब हमें यकीन हो गया कि जल परी का बम इस जगह नदी के अंदर पानी में है। कल रात ठीक 12 बजे इसे चला दिया जाएगा। वो पानी के अंदर ही अंदर दरिया से निकलकर झील में दाखिल होगा, फिर बुगाटा डैम की चट्टान की पक्की दीवार से टकराकर इसके टुकड़े कर देगा। बंद का पानी तूफानी नूह बनकर सारे मुल्क को अपनी लपेट में ले लेगा। वो तबाही मचेगी कि दुनिया दंग रह जाएगी। मैं भी बड़ी तेजी से सोच रहा था कि वहां से फरार होने का क्या तरीका है। पहरेदार बाहर खड़ा था। मैंने उठकर दीवार की दरार से बाहर देखा। पहरेदार के कंधे पर राइफल रखी हुई थी। वो एक पत्थर पर बैठा सिगरेट पीता था। हमारे पास काफी वक्त था। अगर बम फटने के वक्त इसी रात 12 बजे होता तो फिर हमारे लिए मुश्किल होती। शायद हम सोसन के मुल्क को इस तबाही से ना बचा पाते। अभी हमारे पास पूरी एक रात एक दिन था। अगर हम अपनी हिम्मत बुलंद रखते तो वहां से फरार होने के लिए कुछ न कुछ करते। बादल गरजने लगे, फिर वैगन की छत पर बारिश की बूंदें गिरने लगी। बारिश शुरू हो गई। बारिश जोर से हो रही थी। वैगन की छत ने शोर मचाया। कुछ देर के बाद बारिश रुकी। इसके साथ ही वैगन स्टार्ट होकर एक तरफ को चल पड़ी। हमने तशवीश से एक दूसरे को देखा, ये किधर को जा रहे हैं, लेकिन वो हमसे पूछकर थोड़ी ही जा रहे थे। वैगन कई बार इधर उधर मुड़ी। जंगल के ऊंचे नीचे रास्तों पर कई जगह उछली। हमारे सर छत से टकराते टकराते बचे। हमें इतना एहसास था कि वैगन जंगल के अंदर कहीं जा रही है, क्योंकि अभी तक हमें धक्के लग रहे थे। अगर जंगल से बाहर सड़क पर होती तो कोई 15-20 मिनट के बाद वैगन रुक गई। अगली सीट की खिड़की खोलकर किसी ने बाहर छलांग लगाई। फिर हमारा दरवाजा खुला। अंदर रोशनी आई। रोशनी फीकी थी। एक तो आसमान पर बादल थे, दूसरा शाम हो गई थी।
दो आदमी बाहर खड़े थे। ये वो आदमी ना थे जिनको हमने पहले देखा। उन्होंने हमें बाहर आने का इशारा किया। उनके कंधों से मशीन गनें लटक रही थी। हम डर गए। ये लोग हमें शूट करने वाले थे। फिर मुझे ख्याल आया, इन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे जाहिर हो कि हम उनके दुश्मन हैं। फिर हमें क्यों मारेंगे? इनको सिर्फ हम पर शक है कि कहीं हम इनकी स्कीम से वाकिफ ना हो जाएं, इसलिए हमें दूर जंगल में किसी जगह लाकर फेंक रहे हैं। लेकिन इनसे ये बात भी नहीं कर सकते थे कि वो हमें छोड़ देंगे। हो सकता है वो हमें वाकई गोली मार देते, क्योंकि आखिर वो एक मुल्क को तबाह करने की साजिश पर अमल कर रहे थे। वो तो इसकी राह में हल्की सी रुकावट भी बर्दाश्त न करते। हम वैगन से बाहर आए। बाहर आते ही सबसे पहले मैंने जो देखा वो एक मोटा आदमी था जिसके फूले पेट पर पतलून चढ़ी थी, मुंह में पाइप, गले में पेटी लटक रही थी जिससे रिवॉल्वर झूल रहा था। इसके सर पर छोटी सी फौजियों वाली टोपी थी। कानों पर बालों के गुच्छे फूले हुए थे। वो खड़े खड़े यूं आगे पीछे झूल रहा था जैसे किसी चलते बहरी जहाज पर खड़ा हो। इसकी सुर्ख आंखों से जुल्म की शुआएं निकल रही थीं। इसको देखते ही हमारी जान निकल गई। ये जालिम हिटलर का चाचा हमें नहीं छोड़ेगा। इसने अंग्रेजी में हमें कुर्रा कर कहा, ब्राजील के कुत्तों सीधे हो जाओ। रेहान ने हमारी तरफ देखा जैसे कह रहा हो, हम तो सब सीधे हैं, हम में से कोई भी टेढ़ा नहीं। फिर ये गोलगप्पे की औलाद किसको सीधा होने के लिए कह रहा है? इसके पास दो और आदमी खड़े थे। वो भी खूनी कातिल लगते थे। उन्होंने अपने हाथों में हंटर पकड़े हुए थे। ये तीनों भालू हमें लेकर जंगल के ऊंचे घने दरख्तों में चल पड़े। थोड़ी दूर एक चट्टान जो कि जंगली सब झाड़ियों से भरी थी आगे को झुकी थी। यहाँ एक लकड़ी का केबिन था जो हमारे लिए एक बाथरूम के बराबर था। हमारे हाथ मुंह खोलकर हमें इस केबिन में दाखिल किया गया। हमने खुदा का शुक्र अदा किया कि हाथ मुंह तो आजाद हुए। रेहान ने सूसन से कहा, माई जी हाँ जख्मी तो नहीं हुए? सूसन जब भी रेहान के मुंह से माई जी सुनती तो बड़ी खुश होती, इसलिए कभी इसका मतलब हसीन लड़की समझती थी। मुस्कुराकर बोली, नहीं रेहान, मैं आधा मर्द हूँ आधी औरत। रेहान ने मेरी तरफ देखकर कहा, बाजी ये जो गोलगप्पे की औलाद हमारे साथ लट्टू की तरह घूमता यहाँ आया है, ये तो मुझे हलाकू खान का फूफा लगता है। वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। सूसन ने कहा, मेरा ख्याल है ये लोग हमें मारना नहीं चाहते, बल्कि डैम तबाह होने तक हमें यहाँ कैद रखेंगे। मैंने कहा, हो सकता है इसके बाद हमें गोली मारकर यहाँ से फरार हो जाएं, क्योंकि हमने इनकी शक्लें देख ली हैं। रेहान बोला, यार आहिस्ता बोलो, बाहर से वो हलाकू खान का फूफा उर्फ गोलगप्पे की औलाद सुन रहा होगा। वो वाकई सुन रहा था। केबिन का दरवाजा धड़ाम से खुला। वही गोलगप्पा हंटर लहराता अंदर दाखिल हुआ। इसे जोर से रेहान की पीठ पर मारकर गुर्राया, ब्राजील के कुत्ते, अब आवाज निकाली तो खंजर से टुकड़े टुकड़े करके सांपों के आगे डाल दूंगा। हम तो सहम गए। रेहान भी चुप हो गया, मगर कमाल की बात थी कि इसकी जिंदा दिली अब भी कायम थी। अब भी आहिस्ता से बोला, चुप होए गोलगप्पे दे पुत्र। क्या कहा? वो चीखा। सोसा ने अपनी जुबान में कहा, ये अपनी जुबान में माफी मांग रहा है। गोलगप्पा मुस्कुराया। रेहान ने कहा, दूर फटे मुंह गोलगप्पे दा पुत्र। गोलगप्पा समझा रेहान इसको कह रहा है कि अब मैं नहीं बोलूंगा। इसने एकदम आंखें फाड़ कर कहा, खबरदार अब आपस में कोई बात न करे। दरवाजा बंद हो गया। बाहर ताला लगा दिया गया। मैंने सरगोशी में रेहान से कहा, कमाल है, बड़ी बड़ी बहादुरी दिखा रहे हो आज। रेहान ने सुसन की तरफ आहिस्ता से देख कर कहा, ये माई जो यहाँ बैठी है कहीं ये ना समझे कि पाकिस्तान के लोग बहादुर नहीं होते। सुसन ने आहिस्ता से कहा, हंटर से चोट तो नहीं लगी? रेहान ने 2 उंगलियों से विक्ट्री का निशान बनाया जैसे कह रहा हो, फिक्र ना करो, फतह होगी हमारी। रात हो गई। केबिन के अंदर गर्मी लगने लगी। एक आदमी हमारे आगे प्लास्टिक का लिफाफा फेंक गया। इसमें डबल रोटी और प्याज था। हमने शुक्र अदा करके खाया। वही आदमी पानी का थैला फेंकने लगा तो हमने कहा, गर्मी बहुत है। इसके जवाब में इसने हमें अपनी जबान में कोई मोटी गाली दी और केबिन का दरवाजा जोर से बंद किया। इस गाली का भी हमें सुसन ने बड़ी मुश्किल से शर्मा शर्मा के तर्जमा करके बताया, क्योंकि हम इससे बार बार पूछ रहे थे इसने क्या कहा। शायद मच्छर, गर्मी और हब्स के मारे लोग वहां से भाग रहे थे। जरा सुकून हुआ तो हमें नींद आने लगी। थोड़ी देर तक आंख खुली तो मैंने देखा सुसन सो रही है, रेहान सो रहा है। मैंने केबिन के एक छोटे गोल सुराख से बाहर देखा। जंगल में चांदनी फैली थी। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। पहरेदार केबिन के सामने एक पत्थर पर बैठा सो रहा था। इसकी राइफल उसके पास थी। इसके सिवा वहाँ कोई न था। जंगल में हुक्का आलम था। मैंने जल्दी से सुसन और रेहान को जगाया और कहा, फरार होने का सुनहरी मौका है। उन्होंने भी सुराख से बारी बारी झाँका। सुसन ने कहा, दरवाजे पर ताला लगा है, हम इसे किस तरह खोलेंगे? रेहान बोला, वो कमबख्त गोलगप्पे का फुफड़ कहाँ चला गया है? सुसन बोली, वो लोग करीब ही किसी झोपड़े में सो रहे होंगे। रेहान ने सुराख से बाहर देखकर कहा, बाहर वो वैगन जो हमें यहाँ लाई थी नजर नहीं आती। ऐसा लगता है कि इस चौकीदार के सिवा यहाँ कोई नहीं। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, मैंने कहा। सुसन कुछ सोचकर बोली, हमारे पास एक मौका है। दिन निकल आया तो ये लोग फिर यहाँ वापस आ जाएंगे, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जो करना है अभी करना है। मैंने कहा। एक तरकीब मेरी जहन में आई। फिर मैंने अपनी तरकीब इन्हें बताई। रेहान ने कहा, मैं तैयार हूँ। मैंने केबिन के दरवाजे को जोर से बजाना शुरू किया। साथ ही सांप सांप का शोर मचाया। सुसन सुराख से बाहर देख रही थी। बोली, वो भागा भागा आ रहा है। बाहर से पहरेदार ने हमें गालियां देते दरवाजा खोला। फिर इसने सबसे पहले अपनी राइफल अंदर की ओर चिल्लाया, क्या शोर मचा रखा है तुमने? हमने आपस में सारी स्कीम तय कर रखी थी। जो ही इसने राइफल अंदर की, रेहान ने जोर से एक ठुड्डा मारा। राइफल इसके हाथ से छूटकर ऊपर छत से जा टकराई। मैंने पहरेदार की गर्दन पर पूरी ताकत से एक बाजू मारा। वो चकराकर जमीन पर गिरा। सुसन ने राइफल उठाई, इसकी नाल पहरेदार की गर्दन पर रख दी।
इसने वहीं हाथ ऊपर उठा दिया। मैंने और रेहान ने मिलकर पहरेदार के हाथ पर रस्सी से कस के बांधे। सोसन ने इससे पूछा वो लोग कहाँ हैं और एटम बम किस जगह छुपा है, इसका कंट्रोल कहाँ है। पहरेदार कोई गरीब आदमी था, नया नया भर्ती हुआ, इस पर मौत का खौफ छा गया। इसने सब कुछ साफ साफ बता दिया। वो लोग नदी किनारे गए हैं, एटम बम जलपरी के अंदर है और वो नदी में इस जगह पानी के अंदर है जहाँ वो लोग मछलियां पकड़ रहे थे। कंट्रोल कहाँ है, रेहान ने पूछा। वो दरिया के दूसरे किनारे एक चट्टान के अंदर है। हमने इसके मुंह में कपड़ा ठूसा, इसे वहां से उठाया और जंगल में दूर एक दरख्त के साथ जाकर बांध दिया ताकि वो इन लोगों को ना बता सके कि हम दरिया के दूसरे किनारे पर गए हैं। हमने इसे बहुत ज्यादा कस के दरिया से बांधा था, मुंह में इस तरह कपड़ा ठूसा कि वो सिर्फ नाक से सांस ले और इसकी आवाज बंद रहे ताकि वो किसी को अपनी मदद के लिए ना बुलाए। रात ढल रही थी, चांद गुरूब हो रहा था। हम वहां से जंगल में एक तरफ को भाग गए। सोसन ने बताया कि वो जंगल के मशरकी किनारे से होकर दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंचकर दरिया अबूर करने की कोशिश करेगी। ये काम बहुत मुश्किल था मगर हमें हर हाल में ये करना था। नदी में नीचे जाकर जल पड़ी एटम बम को काबू में हम नहीं कर सकते थे क्योंकि इसके ऊपर 7-8 गोरीले मशीन गनें छुपाए पहरा दे रहे थे। वैसे भी अगर हम जलपरी को काबू कर भी लेते तो हम इसे बेकार नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने यही फैसला किया दूसरे किनारे जाकर कंट्रोल रूम पर कब्जा करके एटमी जलपरी को अंदर ही अंदर तबाह कर दें। जंगल सुनसान था। रास्ते में हमें कई सांप दरख्तों पे लटकते नजर आए मगर हमने अपना सफर जारी रखा। दिन निकलने से पहले सोसन हमें दरिया पर ले आई। हमें दरिया पार उसके दूसरे किनारे जाना था। वहाँ कोई कश्ती न थी, दरिया की लहरें तेजी से बह रही थी, इसका पाट काफी चौड़ा था। हमने दरिया के किनारे किनारे मशरक की तरफ चलना शुरू किया। ख्याल था शायद ऊपर की तरफ जाकर हमें कोई कश्ती मिले। दिन का उजाला फैल गया। हमें मालूम था गोलगप्पा अपने साथियों के साथ वापस आ गया होगा। इसे मालूम हो गया होगा कि पहरेदार गायब है, हम फरार हैं। वो जरूर पहरेदार को जंगल में तलाश करेगा मगर हमने एक ऐसी जगह इसे दरख्त से जकड़ कर बांधा था जहाँ वो लोग शायद ही पहुंच सकते थे क्योंकि उधर उनका ख्याल नहीं जा सकता था। बहरहाल हमें खतरा मोल लेकर कंट्रोल रूम के ठिकाने तक पहुंचना था। चलते चलते हम थक गए। पानी पीने एक जगह रुके। दरिया पर झुककर हमने पानी पिया। मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारे आपस में सलाह मशवरा किया कि हमें किस तरीके से दरिया को अबूर करना है। रेहान ने एक तरफ देखकर कहा, वो क्या है? मैंने और सुसन ने देखा है घने दरख्त के नीचे कोई कश्ती की शक्ल की शय उल्टी पड़ी थी। करीब जाकर मालूम हुआ रेड इंडियन कश्ती है जो दरिया को खोखला करके बनाई जाती है। हमने इसे गौर से देखा। इसके पिंडे में कोई सुराख न था मगर इसका अगला हिस्सा जो पानी के ऊपर रहता है टूटा फूटा था। ये काम कर देगी, सोसन ने कहा। हमने कश्ती को घसीटा दरिया तक ले आए, इसे सीधा किया, फिर दरख्तों की शाखें काट कर इनके चप्पू बनाए, कश्ती को दरिया में धकेला। कश्ती पानी की लहरों पर बहने लगी। कश्ती ने पानी में दाखिल होते ही छोले खाए। मालूम होता था कि ये डूबने लगी है। इसमें थोड़ा सा पानी भी दाखिल हो गया मगर फिर वो संभल गई। हमने जल्दी जल्दी पानी निकालकर दरिया में फेंका। दरख्त की शाखों से चप्पुओं का काम लेते दरिया के दूसरे किनारे चल पड़े। इसके बाद की सनसनीखेज वाक़यात इंशाल्लाह आपको अगले खत में बयान करूंगा। आप इजाजत दीजिए। आपका भाई इमरान। ब्राजील, जनूबी अमेरिका। प्यारी बहन सलामत रहो। दरिया अमेज़न का रंग गर्मियों में सुर्खी माइल होता है जिसकी लहरें बड़ी तेजी से बहती हैं और समंदर की लहरों की तरह कश्ती से टकराती हैं। दरिया को देखकर खौफ आता है। ये सचमुच में खूनी दरिया है मगर हमारा मिशन बहुत जबरदस्त इंसानी मिशन था। इसके सामने दुनिया का कोई खौफ नहीं डर सकता था। फिर हमने बड़े बड़े समुद्री तूफानों को देखा था। हम भला दरिया की क्या परवाह करते। दरख्त की शाखों से कश्ती पूरी तरह से किनारे की तरफ नहीं बढ़ रही थी। वो बार बार दरिया की सीध में आ जाती। दरिया के दरमियान पहुंचे तो एक तेज धारे ने हमारी कश्ती को आगे की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। हम चारों तरफ से जोर जोर से चप्पू चलाने लगे। बड़ी ही मुश्किल से हमने कश्ती को इस तेज लहर के ऊपर से निकाला और दूसरी की तरफ ले गए। खुदा खुदा करके हमारी कश्ती दूसरे किनारे पहुंची मगर इसकी हालत ये थी कि इसके अंदर आधा पानी भर चुका था। चप्पू टूट गए थे। हमारे हाथ में टूटी हुई शाखें रह गईं। रेहान ने अपनी शाख को दरिया में फेंक कर कहा, जा तेनू मछलियां खा जान। सोसन थक के चूर हो गई थी मगर फिर भी इसने पूछा कि रेहान ने पंजाबी जुबान में क्या कहा। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता रेहान बोल पड़ा, माई जी मैंने कहा दरिया की लहरों में आपकी आंखों जैसी चमक है। सोसन बड़ी खुश हुई और बोली, रेहान तुम बड़े जिंदा दिल नौजवान हो। इंसान अगर अपनी जिंदा दिली मुसीबत में कायम रखे तो वह हमेशा मुसीबत पर काबू पा लेता है। रेहान ने जवाब दिया, शुक्रिया माई जी, मगर साड़ी से जान निकली जा रही है, खून की होगा। फिर हम दरिया के दूसरे किनारे पर आकर रेत पर लेट गए। बेहद थक चुके थे। कुछ देर आराम करने के बाद हमने सोसन से कहा, इसके ख्याल के मुताबिक वो चट्टान किस तरफ होगी जिसके अंदर गोरिलों ने कंट्रोल टावर बनाया है। सोसन इस मुल्क के रहने वाली थी। दरियाओं, जंगलों, पहाड़ों और चट्टानों को हमसे ज्यादा जानती पहचानती थी। इसने सुबह की धूप में दूर मगरिब की तरफ निगाह दौड़ाई। उधर हमने भी देखा ऊंची नीची पहाड़ियां और दरख्तों के झुंड नजर आते थे। सोसन ने एक छोटी पहाड़ी के ऊपर उभरी चट्टान की तरफ इशारा किया। यही एक चट्टान नजर आती है मुझे इस तरफ। मेरा ख्याल है इस चट्टान के अंदर गोरिलों का कंट्रोल टावर है। रेहान ने कहा, लेकिन कंट्रोल टावर को तो चट्टान के ऊपर होना चाहिए। कैसा टावर है जो चट्टान के अंदर है? सोसन बोली, पहरेदार ने यूं ही कह दिया होगा। ये लोग इस किस्म के ठिकानों को इसी नाम से पुकारते हैं। हमने कुछ देर आराम करने के बाद पहाड़ियों की तरफ चलना शुरू किया। थोड़ी दूर गए थे कि धूप गायब हो गई। आसमान एक बार फिर काले बादलों
से ढप गया। सूसन ने आसमान की तरफ निगाह उठाकर कहा, हमें बारिश से पहले पहाड़ी तक पहुंचना है। रेहान बोला, ये बारिश वाले बादल नहीं लगते। सूसन ने कहा, इस मुल्क के बादलों को तुम नहीं जानते, ये अचानक आते हैं, पानी बरसाकर चले जाते हैं, कभी कभी तो दो दो दिन तक बरसते हैं। अभी इनका मौसम शुरू नहीं हुआ। हम दरिया से काफी दूर आ गए। हम दरख्तों के झुंड के करीब से गुजर रहे थे। यहाँ जंगल नहीं था, ऊंचे नीचे खुले मैदान थे जहाँ कहीं दरख्तों के झुंड आते और दूर पीछे पहाड़ियां थी। हम आगे ही आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, पत्थरों का इलाका शुरू हुआ। पत्थर ऐसे बिखरे थे जैसे किसी मशीन ने इन्हें तोड़कर यहाँ फैला दिया हो। कई पत्थर बहुत बड़े थे, कहीं चौकोर, कहीं गोल। इनके रंग भी अलग अलग थे, कोई भूरा, कोई नीला, कोई स्याही माइल, कोई सब्ज। हम पहाड़ी इलाके में दाखिल हुए। हमने निगाहें इस पहाड़ी पर लगाई जिसके ऊपर भूरे रंग की चट्टान जैसी कोई चीज रखी हुई थी। जब हम इस पहाड़ी के करीब पहुंचे तो वहाँ कोई चीज ऐसी ना दिखाई दी जिससे अंदाजा होता है कि चट्टान के अंदर कोई कंट्रोल टावर है, यानी गोरीलों का खुफिया ठिकाना। रेहान ने कहा, बड़ी बॉय, यहाँ तो बराबर उजाड़ है, ना आदमजात, यहाँ तो जिन भूत ही मिलेंगे। अभी हम बातें करते थे कि हमें जीप की आवाज आई। हम भागकर एक बड़े पत्थर के पीछे छुपे। पहाड़ी के पीछे एक स्याह रंग की गर्द उभरी। जीप निकलकर पगडंडी पर आई, हमारे सामने बड़ी तेजी से आगे निकल गई। इसमें हमें 3 आदमी बैठे नजर आए। सूसन ने कहा, रेहान, तुम तो कहते थे यहाँ कोई इंसान नहीं है, फिर ये यहाँ कहाँ से आ गए? रेहान ने पहाड़ी वाली चट्टान की तरफ देखकर कहा, जरूर चट्टान के अंदर कंट्रोल टावर है, हमें वहां जल्दी पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, अभी हमें बहुत खतरनाक काम करना है। अब हम पहाड़ी वाली चट्टान की सीट से हटकर बढ़ने लगे ताकि चट्टान के किसी सुराख से कोई दूरबीन लगी हो तो वो हमें देख न सके। गिरते पड़ते, ऊंची ऊंची टेकरियों और टीलों को उबूर करते आखिर हम पहाड़ी के करीब पहुंचे जिसके ऊपर कंट्रोल टावर वाली चट्टान थी। चट्टान के ऊपर कोई खंबा, एरियल या तार न था। सूसन ने कहा, आजकल की इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए खंभों की जरूरत नहीं, ये तमाम का तमाम काम कंप्यूटर की लहरें ही करती हैं। इन लोगों ने किसी बड़ी एटमी ट्रांसमीटर के जरिए जलपरी के तबाहकुन बम की फ्रीक्वेंसी जोड़ रखी है। एन रात के 12 बजे वो इस फ्रीक्वेंसी के बटन को दबा देंगे और चला देंगे तो लहरों के दबाव से एटमी जलपरी के बम में अपने आप हरकत पैदा होगी। वो नदी से निकलकर डैम की तरफ रवाना हो जाएगी। यही कंट्रोल टावर का ट्रांसमीटर इसकी सिम को सीधा रखेगा और बम पानी में इधर उधर हुए बगैर सीधा डैम की चट्टानी दीवार से टकराएगा, इसके परखचे उड़ा देगा। माय गॉड! रेहान ने कानों को हाथ लगाए, अगर ऐसा हो गया तो कयामत आ जाएगी। सूसन बोली, हम इस कयामत से इस मुल्क के मासूम बच्चों, बूढ़ों, औरतों और जवानों को बचाना चाहते हैं जिन्हें कोई इल्म नहीं। आज रात 12 बजे वो एक भयानक तूफान में बहकर हलाक होने वाले हैं। मैंने कहा, इंशाल्लाह हम ऐसा नहीं होने देंगे। रेहान बोला, सवाल यह है कि हम चट्टान के अंदर जाकर कंट्रोल ट्रांसमीटर पर किस तरह कब्जा करेंगे। सूसन ने कहा, कब्जा नहीं, हमें इसे तबाह करना है ताकि नदी में ये बम अपने आप ही जाया हो जाए। यही तो मैं पूछ रहा हूँ माई जी। माई जी का लफ्ज सुनकर सूसन फिर मुस्कुराई क्योंकि वो समझती थी रेहान इसे फिर से खूबसूरत लड़की कहकर पुकार रहा है। वो बोली, हमें यही सोचना, गौर करना है, कोई ऐसी तरकीब लगानी है जिससे तीर ठीक निशाने पर लगे, क्योंकि अगर तीर निशाने पर न लगा तो इस मुल्क पर तबाही आ जाएगी। हम खामोश बैठे रहे। आसमान पर बादल और ज्यादा गहरे हो गए। दिन के 12 बजे का वक्त था। हमारे पास जो घड़ियां थी वो इन लोगों ने छीन ली। हमारे पास सिर्फ 12 घंटे थे। चट्टान वाला कंट्रोल टावर सामने था, अंदर जाकर हमें इसे तबाह करना था। रेहान उठकर खड़ा हुआ। दोस्तों, इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ ना होगा, हमें आगे बढ़कर हमला करना चाहिए। सूसन ने कहा, चट्टान के साथ टक्कर मारने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होगा, इससे सिर्फ हमारा माथा फट जाएगा। मैंने कहा, हाँ, हमें सोच समझ कर कोई कदम उठाना है कि जिससे लाठी भी न टूटे और सांप मर जाए। रेहान ने कहा, नहीं भाई, लाठी बेशक टूट जाए मगर सांप मर जाए। सूसन भी उठी, इससे चट्टान की तरफ देखा। बादल चट्टान के ऊपर तक आ गए थे। वहाँ हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा। हमें चलना चाहिए, शायद हम कामयाब हो जाएं। हम चट्टान की तरफ चल पड़े। पहाड़ी के दामन में हल्की सी चढ़ाई थी। एक बहुत ही पुरानी पथरीली छोटी सी सड़क थी जो पहाड़ी का चक्कर काटकर ऊपर चट्टान तक चली गई। इस सड़क पर से जीप उतर कर आई थी। हम सड़क किनारे पहाड़ी के साथ लगकर ऊपर चढ़ने लगे। हम इस बात का खास ख्याल रखते थे कि हमारे कदमों से टकराकर कोई पत्थर नीचे ना लुढ़के, क्योंकि इसकी आवाज से दुश्मन होशियार हो जाता। जब हम चट्टान के करीब काफी ऊपर चले गए तो हमने आपस में बोलना भी बंद कर दिया। अब हम एक दूसरे से इशारों की जुबान में बात कर रहे थे क्योंकि हमारी आवाज दुश्मन तक न पहुंच जाए। हम पहाड़ की चोटी पर आकर एक तरफ होकर बैठे ताकि सांस लें। यहाँ से चट्टान शुरू हुई। ये चट्टान भूरे रंग की बड़ी सख्त पथरीली चट्टान थी और एक पत्थर की सिल की तरह ऊपर तह दर तह थी। ये ऊपर जाकर छोटी हो गई। हवा शाएं शाएं करती सीढ़ियां बजाती वहां से गुजर रही थी। कंट्रोल टावर का दरवाजा चट्टान की दूसरी तरफ था। हम एक दूसरे के पीछे थोड़ा फासला रखकर चट्टान की तरफ बढ़े। सबसे आगे मैं था, मेरे पीछे सूसन, सूसन के पीछे रेहान। उधर चट्टान बिल्कुल सीधी ऊपर को जा रही थी। नीचे गहरी खाई थी जिसको देखकर खौफ आता। हम चट्टान की सख्त दीवार के साथ लगकर आहिस्ता आहिस्ता पगडंडी पर बढ़ने लगे। हमें अंग्रेजी गाने की आवाज आई। शायद अंदर किसी ने टेप रिकॉर्डर या ट्रांसमीटर ऑन किया था। ये एन बर्ग का एक मशहूर गीत था। फिर आवाज रुक गई। किसी ने कहा, इसे क्यों बंद कर दिया बॉय? दूसरे ने कहा, टेप टूट गया है। मालूम हुआ कि ये टेप चल रही थी। बादल हौले हौले गरजने लगे। हवा तेज थी। मैंने देखा चट्टान के ऊपर जाकर एक शिगाफ बना है। इस शिगाफ में से आवाज आती थी। दरवाजा अभी आगे जाकर था।
मैंने नीचे हाथ करके अंगूठे का ऊपर निशान बनाया, यानी सुसन से कहा, ऊपर शिगाफ पर आओ। हम फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे, जरा सी आहट होती तो हमारी मौत यकीनी थी। मैं चट्टान के सुराखों पर पाँव जमाता ऊपर शिगाफ के अंदर जाकर बैठ गया। क्या देखता हूँ, यहाँ एक चौकोर रोशनदान किस्म का सुराख है। मैंने थोड़ा मुंह आगे कर झाँक कर देखा। नीचे कंट्रोल टावर की मशीन, पेंसिल, वायरलेस का सेट नजर आया। 2 आदमी वहां बैठे थे। एक टेप रिकॉर्डर पर झुका इसको जोड़ रहा था, दूसरा वायरलेस सेट के पास बैठा एक नीले रंग के कागज को सामने रखे इस पे निशान लगा रहा था। इतने में सुसन और रेहान भी वहां दबे पांव चलकर मेरे पास शिगाफ के अंदर आ गए। मैंने अपना सर पीछे किया, इशारे से इन्हें झांक कर देखने को कहा। पहले सुसन ने झांका, फिर रेहान नीचे झांक कर देखने लगा। हम शिगाफ की दीवार के साथ लगकर चुपचाप बैठकर सोचने लगे, अब हमें क्या करना है। हम अपनी मंजिल पर थे। यही वो खुफिया ठिकाना था जिसके अंदर गोरिल्लों ने डैम की तबाही का सामान जमा किया था। इस जगह से तबाही का सिग्नल दिया जाने वाला था। सुसन ने मेरे कान के पास अपना मुंह लाकर खुश्क और आहिस्ता आवाज में कहा, तुम बाहर थोड़ा शोर पैदा करो, मैं रोशनदान से अंदर कूद कर दरवाजा अंदर से बंद कर लूंगी। मैंने कहा, ए मक्का बनू, हो सकता है एक आदमी अंदर ही बैठा रहे, दूसरा शोर सुनकर बाहर आए, फिर क्या करोगी। ये काम खतरनाक है, सुसन आहिस्ता से बोली, और कोई तरीका नहीं, वह गुजर रहा है, मेरे मुल्क की सलामती का सवाल है, मैं अपने मुल्क की सलामती के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकती हूँ। रेहान ने भी कान हमारे मुंह के करीब किए। वो हमारी सारी बातें सुन रहा था। वो बोला, हमें तुम्हारे मुल्क को बचाना है और तुम्हारी जान भी बचानी है माई जी। मगर ऐसा लगता था सुसन अपने मुल्क की मोहब्बत में दीवानी हो रही थी। कोई भी कदम उठाने को वो तैयार थी। मैं और रेहान अभी सोच रहे थे कि वो शिगाफ से नीचे उतरी। मैं इसे ऊंची आवाज में वापस नहीं बुला सकता था। रेहान ने सुसन को पकड़ने की बहुत कोशिश की, मगर वो इसके हाथ से निकल गई। चट्टान का जिधर दरवाजा था वो उधर गायब हो गई। मैं और रेहान सर पकड़ कर बैठ गए। खुदा जाने ये दीवानी लड़की अपने वतन की मोहब्बत में क्या कर बैठी, क्योंकि इस वक्त हमारी ज़िंदगी भी खतरे में थी। हम हर हालत में अपनी ज़िंदगी की हिफाजत चाहते थे, क्योंकि बेवकूफ़ी में मर जाना कोई बात नहीं। मैं और रेहान शिगाफ के रोशनदान वाले सुराख से अंदर झाँक रहे थे, क्योंकि हमें डर था कि सुसन कंट्रोल रूम के दरवाजे पर कोई हरकत करेगी। कंट्रोल रूम में दोनों आदमी अपने अपने काम में लगे थे। एक आदमी टूटी हुई टेप को जोड़ रहा था, दूसरा वायरलेस सेट के पास बैठा नीले कागज पर निशान लगा रहा था। अचानक वायरलेस से किसी की आवाज़ आई। इस आदमी ने जल्दी से माइक्रोफोन लेके बात करना शुरू की। मैंने और रेहान ने कान लगा। इनकी गुफ्तगू यूं थी, हेलो रॉजर, 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 हेलो रॉजर, 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 चार्ली दरियाई घोड़ा आ गया, बोलो क्या आ गया, हेलो चार्ली दरियाई घोड़ा भून कर खा गया। सुनो, 2 सरकारी जासूस जंगल में हमारी कैद से भाग गए हैं। हो सकता है वो पुलिस या फौज को लेकर कंट्रोल टावर पर हमला करें। होशियार रहना। गिनती शुरू कर दी गई है। हेलो चार्ली, सुन लिया, फिक्र न करो। कंट्रोल मशीन पर हमारी गिनती सुनते रहना। ठीक रात 12 बजे गिनती खत्म होगी। बम पोबाटा डैम से जा टकराएगा। बड़े दरियाई घोड़े को सिग्नल दिया गया है। बड़े दरियाई घोड़े ने रकम और सोना कहाँ रखा है? सारी रकम और सोना हमें क्यूबा पहुंचते ही मिल जाएगा। ये सारी दौलत हमारे बॉस के नाम क्यूबा के एक बैंक में जमा है। हेलो हेलो, हम आधी रात को यहाँ से निकल जाएंगे। हाँ, हेलीकॉप्टर ठीक 11 बजे रात तुम्हारे पास आएगा। हेलो हेलो चार्ली, हेलो चार्ली, हेलो रॉजर, हेलो रॉजर। सरकारी जासूस यहाँ नहीं आए। यहाँ चारों तरफ सन्नाटा है। अगर कोई सरकारी जासूस नजर आया तो हम इसे गोली मार देंगे। अगर फौज का कोई दस्ता हमला करने आया या किसी हवाई जहाज से बम गिराया तो कंट्रोल मशीन को तहखाने में छुपा देंगे और वहां से खुद निकल जाएंगे। मशीन अपने साथ रात के 12 बजे सिग्नल नशर कर देगी और खुद बहुत बम फट जाएगा। तुम लोग हमें कहाँ मिलोगे? जंगल वाले ठिकाने में, नदी के पास। 4 हेलीकॉप्टर हमें लेकर समुद्र की तरफ उड़ जाएंगे, जहाँ क्यूबा की आबदोज कश्ती हमारा इंतजार करेगी। ओके बॉस। ओके दरियाई घोड़े। वायरलेस पे बातचीत खत्म हुई। ये लोग क्यूबा वालों से करोड़ों डॉलर की रकम और सोना लेके ब्राजील का सबसे बड़ा डैम तबाह करने आए थे। मैंने रेहान की तरफ देखा, इससे सर हिलाया, गोया कह रहा हो मेरे बात सुन ली। हम बेचैन थे। सुसन कोई नया गुल न खिलाए, कोई बेवकूफ़ों वाली हरकत न करे, बैठे बैठे जिससे बना बनाया खेल बिगड़ जाए। अचानक चट्टान के दरवाजे की जानिब मुझे बिल्ली की म्याऊं म्याऊं सुनाई दी। ये बिल्ली कहाँ से आ गई, मैंने सोचा। मैंने अंदर झांक कर देखा। बिल्ली की आवाज़ दूसरी बार आई तो वायरलेस वाले आदमी ने कहा, यार ये बिल्ली रात को तंग करेगी, इसे अभी यहाँ से निकालो। वो आदमी जो टेप जोड़ रहा था कहने लगा, यार तुम जाकर इसे निकाल दो, मैं जरा काम में लगा हूँ। वायरलेस वाला आदमी बोला, ये टूटा हुआ टेप रिकॉर्ड लेकर बैठे रहोगे, कल क्यूबा तुम्हें अपने हिस्से के 10 लाख डॉलर मिल जाएंगे, फिर नया खरीद लेना, इसे फेंक दो। दूसरा आदमी बोला, हाँ खरीद लूंगा, लेकिन ये मेरे एक प्यारे दोस्त की निशानी है, इसे मैं अपने आप से जुदा नहीं करूंगा। बिल्ली एक बार फिर बोली। हम समझ गए ये सोसन है, बिल्ली नहीं। सोसन बिल्ली की आवाज़ निकाल रही थी, लेकिन बिल्ली की आवाज़ निकाल कर वो क्या करना चाहती थी इस बारे में हमें कुछ पता ना था। बस बिल्ली की आवाज़ पर हमारे दिल खौफ के मारे धड़क उठे। खुदा जाने अब सोसन क्या गुल खिलाएगी, हमारे साथ अभी क्या गुजरेगी। जब तीसरी चौथी बार बिल्ली की म्याऊं म्याऊं सुनाई दी तो वायरलेस वाला आदमी नीले कागज लपेट कर इन्हें टोकरी में रखता उठा और बाहर चला गया। अभी कुछ होने वाला था। सोसन आखिरी लड़की थी, वो एक हट्टे कट्टे ताकतवर मर्द का मुकाबला नहीं कर सकती थी। हम दोनों अपनी अपनी जगह सहम कर बैठ गए। सोचने लगे, अगर कोई तूफान आ गया तो हम क्या करेंगे। अचानक हमें बाहर
किसी एक आदमी की भयानक चीखने की आवाज आई। ये चीख इतनी खौफनाक और अचानक थी कि हम डर के मारे उछल गए। टेप रिकॉर्ड वाला आदमी बाहर आया। ये चीख इसके वायरलेस वाले साथी की थी जो चट्टान के ऊपर से नीचे गहरे खड्ड में गिर गया। खुदा जाने ये कैसे हुआ, क्योंकि इतनी बुलंदी से गिरने वाले की हड्डी पसली भी नहीं मिलती। रेहान ने मेरे कान में कहा। सुसन ने कमाल कर दिया, इससे से धक्का देकर गिरा दिया। मैं अंदर जाता हूँ। रेहान भी सुसन वाला काम कर रहा था। मैं कुछ भी न कर सका। रेहान ने शिगाफ के रोशनदान से कंट्रोल रूम के अंदर छलांग लगाई। वायरलेस सेट के पीछे जाकर छुप कर बैठ गया। ये वायरलेस सेट एक अलमारी की तरह था जो कमरे के दरमियान में था। अब हालत ये थी, सोसन बाहर, रेहान अंदर, और मैं ऊपर रोशनदान के शिगाफ में बैठा सोचता था कि जो कुछ हो रहा है आखिर इसका नतीजा क्या होगा, क्योंकि हर कदम पर यूं ही जज्बात में आगे नहीं बढ़ा जाता। हर काम सोच समझ कर किया जाता है। यहाँ सब कुछ जज्बात में ही हो रहा था और इसका नतीजा आमतौर पर खराब होता है। फिर भी मैंने खंजर निकालकर हाथ में पकड़ा। कोई गड़बड़ हुई तो मैं अपना बचाव कर सकूं, दुश्मन पर हमला भी कर सकूं। मैं रोशनदान से अंदर झांक रहा था। मुझे कंट्रोल रूम का छोटा दरवाजा दिखाई दिया जो खुला था। फिर मैंने सुसन की चीख सुनी। मैं कांप गया। काम खराब हो गया। सुसन पकड़ी गई। मैंने अपना सर पीट लिया। क्या देखता हूँ, वही आदमी सुसन को गर्दन से दबोचे दरवाजे में लाया। इसने इसे जोर से धक्का दिया, दीवार के साथ फेंक दिया। जेब से पिस्तौल निकालकर इसकी तरफ तान कर चिल्लाया, तुम्हारे बाकी साथी कहाँ है? तुमने मेरे दोस्त को पहाड़ी से गिराकर हलाक कर दिया, लेकिन लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने ठीक ठीक बता दिया कि तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ है तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। और वो किस वक्त हमला करेंगे? सोसन गूंगी बनकर हूँ करने लगी। इस आदमी ने जोर से सोसन को एक थप्पड़ मारा। सोसन के मुंह से खून की एक लकीर बह निकली। हरामी कुत्ते, तुम हमारे मुल्क पर हमला करने आए हो। तुम हमारे दुश्मन हो। मैं तुम्हें अपने साथियों के बारे में कभी नहीं बताऊंगी। वो आदमी तैश में था। इन लोगों की सारी स्कीम फेल होने का खतरा था। इन्हें करोड़ों डॉलर की रकम मिलने वाली थी, वो बर्बाद भी हो सकती थी। इससे पिस्तौल की नाल सोसन की कनपट्टी के साथ लगा दी और कहने लगा, मैं 1 2 3 गिनूंगा। अगर तुमने मेरे 3 कहने से पहले ना बताया तो मैं गोली चला दूंगा। इसने कहा 1 2। इसके बाद जो कुछ हुआ वो मैं आपको इंशाल्लाह अगले खत में लिखूंगा। आपका भाई इमरान।